So in both the respects, they will discuss their own experience and we will share their personal experience with all of you. And accordingly, if you have any queries, you are also free to raise those queries after raising your hands. Okay. Now I am handing over my mic to, of course, Abhilash. Before that, I would like to simply ask my manager of AI, Mr. Sanjay Maurya, to felicitate both of them by simply handing over this bouquet. Sanjay, please. A big round of applause. Yeah, the answer okay. So thank you both of you to simply grace this occasion and of course to elect all these fresh candidates. On handing over this mic to of course Abhilash Mishra, and then afterwards Vidyansu will also come over and will also start the call. Right? So thank you. Thank you. Thank you, Mr. Thanks to all of sir. Because we are standing here because of our teachers. So, and as Anusha said, I've known Alok sir personally since I believe the starting of starting. Am I audible? So as Alok sir, as Amit sir said, I am going to Alok sir and Amit sir from UPEs. 2014. This was my fourth attempt. I'll tell you my UPSC journey. In the first attempt in 2013, I could not qualify mains. In the second attempt, I got 5.89. Got in IITS. The third attempt, I got a rank of 341. I got customs, in which I am currently working. And this year, got rank 9. So I have known them personally, and also a lot of GS portions, little bit of public administration has been taught to me by Alok sir and Mr. Last year, sir, Alok sir and Mr. are known for their GS test series, so we also joined here. And since writing is a very critical portion of this examination, a book test series is a must, and quality checking is also a must. In some cases, sometimes you will find some good test series, but quality checking is an also important test set, because once you, until unless you improve, somebody tells you where are you going wrong, where are you committing mistake, it will be difficult to improve. So I once again thank sir for all the effort that they have put in checking our copies and helping us to improve. Any specific thing, because I don't know on what topic I should talk about. If you have some questions at the starting, I am ready to take it. Let's, in brief, I'll say that GS this year probably has, many people have got very good marks, but GS, getting good marks in GS is a requirement for this examination, because it is an objective part of this examination. See, there is a UPSC trend for the optional. This year my option was public administration, UPSC pushed me, but it's not true for GS. GS is an objective part, at least in the sense that even if mark goes down, it will go in a proportionate sense. And many people score consistently well in GS. So if you master your GS and improve your answer writing and presentation skills, probably you are assured of some marks in GS section, and that can help you in getting good rank. Okay, last year I was getting 370, 380 marks in GS. I was getting decent marks in PubAd, but this year there is a jump, some due to inflation, some due to my own efforts, and combinedly I got good enough score in GS that has helped me in getting this rank. So, in brief, you all must be knowing GS 1, 2, 3, 4 different topics, basic textbooks that we should read. I will say that in all probability we all must have read enough that is required for this examination. And even if you are asked, sir, because many times you are asked, sir, how should we read more about this topic, I will say you have read enough. Now you need to write, because your copies are your representation when it goes to the examiner. You are not there. What you have written is most important. So the task comes how to present your answers and how to write. I will say
that particularly for in the GS papers, GS 1, 2, 3, 4, 2 and 3 specifically are more current based than GS 1 and 4. So for them, you should be aware of the basics. And once you are aware of the basics, try to add value to them by adding the correct topics that you read in the newspapers or other material regarding current affairs that you are reading. And once you do it for 3 to 5, 6 months, you will analyze, or when you will revise, you will notice that you have a trend of topics. For example, if you have, there are different topics in GS 2 and 3. If you have done something for agriculture, society, agriculture, security, and you have in one place put up some basics, and after that added to this topic the current affairs that you are getting from newspapers, you will observe that you have created a trend of 3 to 4 months. And once you revise, you will see, okay, this all thing has happened in agriculture, this all thing has happened in security for the past 1 year or so, and you will be able to comprehend the questions and present your answers equally well. So for paper 2 and 3, this is very important. Having a grasp over the basics in addition to current affairs. This is I am saying so because many times we are so lured by the fact that only current affairs will be asked. But this year, if you will see GS paper 2, it was more from the static portion. So you should be optimal in your preparation in the sense that you should be ready with the basics also, and current affairs, since everybody is doing, you will also have to do it. And any answer, even if it is from the static portion, you can always add value to it by mentioning the current affairs and relating the contemporary happenings to it. So these two things have to be there. So, and another thing is, whenever you attempt any question on the GS section, see to it that you attempt all the questions of it. I still remember I have bought certain copies. I was seeing it myself. In some questions I have written something, and I think Amit sir checked that copy. He has written in it, okay, you have missed this part. So this is how you improve, because I must have misread that question, or either I had interpreted that this question was asking only this part. But the question was having certain dimensions. And if we know certain part of the questions and answer only limited portions of it, you are bound to get low marks, because you have not neither understood the question in a holistic manner, neither you are answering it in all its entirety that is needed. So the very important thing is that you need to answer each and every part of the questions. Suppose even if you are not aware of a particular part of the question, try to explicitly write that part and write some general things. Even if you will not say get very good marks, but the examiner will realize the fact that you have noticed that this was also asked in the examination in this question part, and you will get better marks than what if you say ignore this part of the question. Or another thing I'll say that presentation in my case I believe has helped me. So I'll say presentation is a very major requirement for this examination, because such is the competition that many of us know a lot of things. So how can we create a difference? Is what unique things you can present, and what same thing you can present in a unique manner. So the presentation part is very important. And how can you improve your presentation? Is by enhancing your skills in test series programs like AI offers. In the sense that once you make a plan that you are not just going to simply write all the questions paragraph wise, try some variation, write some questions in point wise, write some questions in paragraph wise, collect some good facts, collect some good figures, collect some good commission committee observations. That is very necessary for the topic that you are reading, and you can quote them in your answers. So what it will do, it will add content to your answers, as well as it will give a presentation sort. Suppose if you are writing all the questions, suppose this is the copy and you are writing all the answers in simple format. And after 5 you are seeing many copies, and after that you see a same question has been answered. For example, you written little introduction, drawn a little flowchart here, and then explained written heading here. So automatically you feel that this is answer probably similar in content but presented in a different manner. So I think in my case it has helped me. So if you try and probably use it in a better manner, it can help you also. But the most important thing is that you cannot ignore content in this. This only will not do.
The first and the major thing is the content that has to be there, and hopefully the reading of the UPSC that we have done should enable us to write good enough content. And the second, in addition to it, it's a kind of packaging. So in addition to it, if you use flowcharts, diagrams, tabular form representation of data that you know specifically for the society part in GS paper 1 and for GS paper 3, the economic part, for which the data is very important, sir. Amit sir gave us many data regarding the banking and primary banking system. I remember the test series last year. So we noted it down somewhere, and if we found that we can use that data somewhere, we will pull it down from our memory and write it in the answers using a box or something. It gives value to your answers. So remember, you can always have the content, but you should always think about it that I need to present it in a little better manner than I have done earlier. So you can plan for regular improvement. And this thing will not happen automatically in the mains examination. Because it is a limited period of time, 3 hours, you are under a lot of stress, you need to write all the 20 questions. This can only happen if it is in your habit. And that habit will only develop once you practice it in a lot of test series program. Write your test series very religiously, in a very disciplined manner, because writing is a major component of this format of examination, especially after 2013, and it will help you. So try things like these. Probably it can help you. Not only limit to these. If you can think of something better along these lines, if some better advice you get while you will be writing something, sir will give you input. So in that way you can constantly improve in your presentation and content. Another thing I would like to tell is that role of examples. Read the command that is there in the questions. Each question is not having the similar command. You must be noticing that some questions have critically examined, some questions have analyzed, some questions have justified, some have elucidated. These are the different commands that are used in the question. We have also done it, many people do it, that we ignore the command because such is the stress under which we write exam. We think, kuch bhi likho yaar, likhna to hai pehle. But people get an edge over it. People get an edge by addressing to the command. Suppose the question is of justify, elucidate or illustrate, these three I'll take. And if we ignore and somehow alter to present a very good example, you will not get good marks. Because the question explicitly asks for example. If it is saying illustrate, it demands a solid example to prove what statement has been written in the question. So in that sense, it's very important. If the question is of comment, it says comment. And generally what we do in our way of writing in points, we write the 2 points in the for, 2 points in the main, 2 points for for, 2 points against, and 2 points for something. We ignore the conclusion. But for comment type questions, presentation of your view over the topic is very important. And if you ignore to write a good conclusion, your view for the topic, again you are not addressing the entirety of the question. As I said, you need to address the question in its entirety. And that command is also a critical part. Similarly for examining, for critically examining, for analyze, I hope sir will clear all these keywords before you write your test series. So these are very important. Try to focus on these things also. These are little things, but I think even if you address it properly, suppose it helps you increase half marks, 1 marks in each question, it will give you a quantum jump. Because 1-2 marks in this examination is like going to 20-30 rank. And see with half marks improvement in one question, you can improve a lot, 10 marks in each paper. That will change the whole scenario. Another thing is how to present a good example. See, last year, me and I had this very advantage that one of my best friend, Avneet Kumar Rai, we used to prepare together, and another good friend of mine, Vishal Bhargava. So what we did was we had syllabus in our mind, since it was our 4th attempt, probably seeing a syllabus every year. So we got hold of it. So you should also get hold of your syllabus. Now, how getting hold of syllabus helps is that whenever you read a newspaper article or any mains topic, it should strike you that, okay, this topic can be used in this portion of the syllabus. And a single news item can be used in 2 to 3 locations. I'll give you an example. For example, say I have, there's a news report, suppose there's a recent incident in which an IS was covered by some villagers or farmers. Now suppose this is a simple news item. If I see it, how can we connect it?
if I quote it, if I can use it in society in some sort of like social mobilization or some sort of social disturbance, I can quote it. I can quote it in paper 2, saying it is an administrative failure because they have failed to address. I can use it in ethics, it is a bad model of leadership. It is a bad decision making to go into an area of that sort where it is hopeful to be so violent. This is a crude example. But if you remember your syllabus well, you can always correlate your current affairs with the topics given in the syllabus. And it really helps. For example, last year there was a question in geography regarding why Delhi is polluted compared to Kolkata, Mumbai and other metropolitan cities. So it was a question directly from the current affairs. But since it was a geographical question and if we had like some syllabus at the back of the mind, that location paper 1, GS paper 1 syllabus in our mind, and if we had read this article that Haryana and Punjab farmers are burning crops and construction waste and all these are because Delhi had odd even rule, and there was a lot number of articles came explaining why Delhi is polluted. And it was a direct question and a good amount of content could have been gathered from these topics, and some geographical explanation basic to it like anticyclonic condition or could have been added to it. So in this way, if we know our syllabus and realize that what current affairs we are reading and add to it, it can really help in producing us good examples. And you should always be conscious of the fact that whenever you are quoting examples, it should be relevant and context specific. By just sometimes in many of the questions, if you realize that if you know a good example, you can directly give a message to the teacher who is checking your copy or the examiner that you have understood the question. Because see, if you have read a particular topic, suppose you have read social justice or something in economy, and you read a newspaper article, okay, this I have read in theory. So it's a correlation. It helps you improve your understanding. And once you write that example in your copy, examiner is bound to believe that yes, this guy has understood our question. That is the reason why he is producing an appropriate and context specific example. So that the role of example in this sense becomes very good. In this role of example, I believe, I may be wrong, that it is very, very important in GS paper 4. It is important for all the papers, but for GS paper 4 it becomes very important. The case studies that are there and the theoretical portion that are there, they have to be proved, I would say, in technical terms using good examples. For example, last year there was a question of Gandhi's social science, 7 social sins. Now suppose many of us would be knowing that there are 7 social sins of Gandhi. So, but if I write 7 social sins, for example, I will say that now just to say, many of us would be knowing what are the 7 social sins. But if I say I just give a introduction of 3 lines, that Gandhiji gave the social 7 principles in this time when we were traveling or India was going, ऐसा कुछ करके introduction एक बनाया आपने. उसके बाद suppose I say yes social sins, and here I write explanation just to give a brief explanation and any basic example, and here I write contemporary application. So it is giving a different outlook to my answer, because not only I am writing social sins, I am explaining it, giving it basic examples, give 2 to 3 examples for each. For example, we can have wealth without work. So you can give different examples that public service is defamed because of it, because it is considered a sinecure. People say they don't want to work but just want money. Just give this example. And contemporary application, this is, you can relate to many of the news items you study. Pleasure without conscience. The rich, non-rich gap you can quote here. People who earn money should have a responsibility, should have a conscience. You can give example of Warren Buffett here in a positive sense. And contemporary application for a society like ours where 90% of the wealth, you can give examples like that. There is a huge division of class in our society. So it becomes a contemporary application. So you have like, I believe that apart from just writing a social series and giving 1 2 examples, if you follow this kind of approach and relate it to the contemporary happening in ethics paper, it can be a good answer compared to if I just write these portion or this portion. Because the question didn't ask for it. The question just said, briefly describe the 7 social sins of Gandhi.
Now rest is up to you, how can you innovate and how can you present it in a different way. But here again, the basic thing is this, you should know it. Innovation or any addition to it can only be after you know this. So okay, this is a very good question of highlighting that importance of basic content and application of mind and relating current affairs what you are reading a lot in fact I say. Please ask question in between so that I will also have a diversion. I will also think. Yes, if you have any question, you can raise your question. Regarding Essay, I'll not be able to help you honestly because I have struggled with essay in my all 4 attempts. I'm not a good person to guide you on essay. I could only manage my essay performance is 98, 106, 102, 130. Now you will not ask essay from me. Essay, hopefully sir will invite someone good who can. But I'll say I have learned from my mistake that you should write your essay in a very simple form. Because I consider that what mistake I did was I was making it too much complex. Write short sentences, have a proper flow, and try to have different dimensions. These are the basic things that everyone will tell you, but it is very difficult to implement. And it requires a skill that again can be mastered only through a lot of practice. But if you will ask anyone, probably he'll tell all the basics. I also know, but I could not improve. But hopefully you should do it in a different manner and try to work on it. Because I believe, I'll say, sir will concur with me, that ethics, essay and optional. These are the 3 things interrelated, and a lot of people who have got good ranks do very good in these 3 papers. If you see ethics score, optional, essay people have got 160. Don't ignore it. Do a lot of practice. We see that okay, essay is we'll write anything, but it creates a huge of margin. Suppose I have got 130, another people are getting, many people are getting 158, 160. That is a 28, 30 number margin. That is of very, very high value in this examination. Do not ignore it. Practice your essay a lot. Get it checked by sir and any other source that you like, and try to constantly improve. Because it again, many people are gifted with good writing skills. So they have an edge over essay, in essay paper. Anything? Divyanshi can also enlighten this. मेरा नाम दिव्यांशु पटेल है और ये मेरा पहला मैच था, 5वां अटेम्प्ट था। आप लोग समझ सकते हैं 4 बार मैं प्री फेल हो चुका हूँ। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है जानना, यहाँ जो लोग बैठे हैं, कि अगर सही गाइडेंस मिले, एक अटेम्प्ट बहुत है मेंस में। क्योंकि मेंस में जाने के बाद जो समस्या आती है वो मैंने फोरम IS पे भी, जो एक वेबसाइट है वहाँ पे भी लोगों के कमेंट पढ़ के देखे कि मेंस नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट उनके 3 हो रहा है। उनकी के मास्टर है, कंपनी का मास्टर नहीं था। 4 अटेम्प्ट में गिरा, 5वें में मैं खड़ा हुआ, सर से मिला। सर ने मुझे यही कहा कि आपको अगर मेंस पास करना है, जैसा हम बोलते हैं आप वैसा कीजिए, बाकी आपकी राइटिंग जो स्टाइल है वो हम इम्प्रूव करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए कॉपी भी आज लेकर आया था, इसे आप एज ए स्पेसिमेन बाद में देख भी सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो भी अभिलाष भाई बता रहे थे कि क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो सबको पता है, कैसे आने हैं, क्या आना है, सिलेबस भी पता है। यहाँ मैं कोई नई चीज़ नहीं बता सकता, या अभिलाष भी कुछ नया नहीं बता कर गए। नया ये है कि बड़े बड़े नामों के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये बहुत ही मजबूती के साथ बोलूँगा कि बड़े बड़े नामों के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक बार AI से जुड़िए और टेस्ट लिखिए। क्योंकि अभिलाष इस बात को मानते होंगे, मैं तो इस बात का सीधा सीधा गवाह आपके सामने खड़ा हूँ। एक ही अटेम्प्ट दिया मैंने मेंस और मेरे 422 GS में आए, 140 मेरे essay में आए। उसका कारण क्या था? मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरी राइटिंग एवरेज थी। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बुरा था, पर सर ने कॉपी देखी, उन्होंने मुझे अभी भी याद है, उसका सब बोल गए हूँ। एक क्वेश्चन था पंजाब हिस्ट्री पे, क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा है, और उस पर आपका कमेंट था कि तुमको नॉलेज है, तुमने भर लिया है दिमाग में, बट तुम्हें ये तरीका सीखना होगा कि कैसे इसको कंसाइज किया जाए। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा था, करीब मैं आधे पेज का इंट्रोडक्शन लिखता था। तो सर ने कहा कि ये दिखाता है कि आपको नॉलेज है, बट आप इसको कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं और ये आपको मेंस में नुकसान पहुँचाएगा। फिर पिछला शुरू हुआ, पहला टेस्ट लिखा, दूसरा टेस्ट लिखा। होता क्या है कि मैं कहीं और भी लिख रहा था, विजन में मैं लिख रहा था, वहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल सकती है। इस
चीज़ को मैं यहाँ बोलना चाह रहा था, इसीलिए मैं आया हूँ कि रात को 10 बजे भी जब मैंने सर को मैसेज किया मेंस के दौरान कि सर आज मैं एसए का पेपर लेके आया हूँ, वो स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास सेव है मेरे मोबाइल में। कोई भी कोचिंग वाला शायद आपको रिप्लाई नहीं करता, पर सर ने रिप्लाई किया, सर ने पूरा पढ़ा मेरा वो बड़ा सा मैसेज, इससे मैंने ये पॉइंट लिखे हैं। सर ने उसी दिन कहा था कि 135 के ऊपर आने वाला है। ये एक मोरल बूस्टर होता है, मतलब अगर आप मेंस लिखेंगे इस साल लिखेंगे या पहले भी लिख चुके होंगे बहुत सारे लोग हो सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एसए का पेपर लिख के आए, आपका पहला मेंस है, आपकी ड्रीम जॉब है, आप 4 बार प्री फेल हो चुके हैं, सोसाइटी आपको एक तरीके से रिजेक्ट कर दी है कि इसके बस का नहीं है, और आप मेंस लिख रहे हैं। तो उस वक्त की हॉस्टल में, मैं जेएनयू में हूँ, तो उस वक्त की हॉस्टल्स में लोग बोले कि ये भी लिख रहा है मेरे तो उस वक्त जरूरी होता है कोई तो ऐसा हो जो आपको बताए कि हाँ भाई आपने ये पॉइंट लिखे हैं, इसमें ये सुधार हो सकता था, बट 135 आपका रखा है। जीएस में ऐसा करना, ये चीज़ें लिखना, पैनिक मत होना। कोई क्वेश्चन ऐसा था, मैसेज अभी भी है कि जीएस 2 में ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आए जो तुम्हें लगे कि टेक्निकल है या लॉ के उसमें है, तो कुछ तो लिख कर आना और सोचना लक्ष्मीकांत को, बेसिक चीज़ लिख के आ जाना। अगर वो लिख दोगे तो नंबर मिलेगा, रिजल्ट आपके सामने। एसए पे सर अभिलाष ने मुझे इतनी बात खत्म करके मुझे दिया था। एसए पे मैं 140 को बहुत अच्छा अगर नहीं मानूंगा तो बहुत बुरा भी नहीं है। पहला ही एसए लिखा था मैंने, एक एसए केवल एआई में लिखा है, वो कॉपी मेरे घर पे भी है, मैं भी जाऊँगा नगर में। उसके बारे में ये था कि 115 नंबर मुझे मिले थे। सर ने कहा था इसके बाद तुम एसए मत लिखो, मेंस आ गया है, तुम अपना जीएस पे फोकस करो, संस्कृत पे फोकस करो, जो मेरा ऑप्शनल था। एसए के बारे में सिर्फ इतना था कि सर का ये कहना था आप जो भी लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। फैक्ट्स तो आप डालेंगे लेकिन एसए फैक्ट का खेल नहीं है। अगर आप केवल फैक्टॉइड बनाकर कॉपी को छोड़ आएंगे, फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने इंडिया ईयर बुक भी पढ़ी थी, मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा था, मैंने 2-4 और वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट भी पढ़ी थी, डेटा डाला था। डेटा का खेल नहीं है। थोड़ा आपकी भाषा धारा प्रवाह होनी चाहिए, भाषा में आपके एक अपील होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है एसए में एक अपील होनी चाहिए, वो अपील डेटा से नहीं आती है। डेटा को अगर आप इंटरप्रिटेशन के जरिए समझा सकते हैं और वो उतनी धारा प्रवाह भाषा हो जितनी जैसी रिपोर्ट्स में लिखी होती है, फिर आपको कोई 150 प्लस लाने से रोक नहीं सकता। मैं एथिक्स से शुरू करूँगा, थोड़े में ही बात करूँगा, बाकी तो अभिलाष बोल चुके हैं। एथिक्स से शुरू करूँगा क्योंकि एथिक्स के लिए पूरा मार्केट भरा हुआ है, हम सभी उसके शिकार हैं। एथिक्स से आप मुखर्जी नगर से शुरू कीजिए और यहाँ तक एथिक्स के मास्टर्स हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एथिक्स मैंने सर से ही पढ़ा और वो क्लासरूम में नहीं पढ़ा, टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ा। जो आज हमारी ये गैदरिंग है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासरूम की कोई बात मैं नहीं करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे डर इसी चीज़ से लग रहा था कि 3 पेपर तो मैं पढ़ लूँगा, 4 अटेम्प्ट से झेल रहा हूँ, तो मेंस भी थोड़ा बहुत देखता था बीच बीच में, लेकिन एथिक्स क्या है ये तो कभी नहीं पढ़ेगा। जब भी होता है यूजुअली लोग उसके बाद ही एथिक्स को देखते हैं। मैं मिला सर से, सर ने मुझे 1-2 क्वेश्चन पूछे, मैंने लिखे उसको, टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया। फिर मुझे आइडिया होना आया कि हाँ ये एथिक्स है और इसमें क्या लिखना है। मतलब एथिक्स का अभी कल मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, उसने बताया कि मैं एथिकल होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात में तो शौक में था कि मैं इसको बताऊँगा तो क्या समझेगा मुझे। मैंने उसको फिर समझाया कि भाई साहब ऐसा है कि आप एथिकल मत बनिए, एथिकल बनने की जरूरत नहीं है आईएएस होने के लिए, आप एथिक्स पढ़िए और पढ़ने ज़्यादा जरूरी है, तब लिखिए उसे। गांधी जी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा डिस्कस किया अभिलाष ने। उसके बारे में ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन नर्वस कर सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। आपने मेंस लिखा, मेरे साथ के काफ़ी लोग थे, वो रघुपति राघव राजा राम जी लिख कर आए थे इस क्वेश्चन में कि ये 7 सेंस में है और ये बाकायदा फोरम आईएएस की वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है ऐसे आंसर। और मेरे कोई मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैनिक में होता है। अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिला हुआ है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आपको ये पता है कि अगर आपको 7 सेंस नहीं पता है, बिल्कुल साथ के साथों नहीं पता है, तो आप कम से कम ऐसी कोई बातें नहीं लिख के आएंगे कि एग्जाम का मूड ऑफ हो जाए। रघुपति राघव राजा राम तो नहीं चलेगा। अगर आपको आईएएस बनना है तो सेंसिबल बातें लिखनी पड़ेंगी कि ठीक है आप ये इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं एग्जामिनर को कि सर मुझे ये नहीं पता है, तो मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ। जैसे मैंने किया था मैकब्राइड में, मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था सर कि मुझे नहीं पता था मैकब्राइड क्या है। मैंने यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा लिखा, मैकब्राइड के बारे में लिखा, फिर जैसा हमारा एक अच्छा सा देश है कि हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, मैंने उसको लिखा था। उसमें उस क्वेश्चन में भी था कि क्या इंडिया ने अडॉप्ट किया है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया है। इंडिया यूनेस्को की सारी पॉलिसी में बिलीव रखता है और काफ़ी अच्छा चल रहा है।
सोसाइटी है। और देखिए यही मतलब आप कहें कि ये लग था बंदे का तुक्का लग गया, लेकिन वो कम्युनिकेशन पे ही मैग्रेट मिशन था। लास्ट की 3 लाइन में वो मैंने कम्युनिकेशन पे जोड़ना शुरू किया। सोशियोलॉजी में PhD कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल थ्योरी डाल दी, और जब आके देखा तो मैंने कहा बस 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे। ये चीज़ें तब आएंगी जब आप टेस्ट सीरीज में लिखेंगे, क्योंकि क्लासरूम में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बड़ी कोचिंग भी है, छोटी कोचिंग्स भी हैं, बिना कोचिंग वाले लोग भी सफल हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी मेहनत में, अगर अभी यहाँ पर कोई नहीं है स्वीकार करेगा, बाहर कोई मिलेगा तो सभी ये कहेंगे, अल्लाह से भी पूछेंगे, हो सकता है मुझसे भी पूछें कि भाई शॉर्टकट बता दो तो जिससे जल्दी से हो जाएगा। शॉर्टकट यही है टेस्ट सीरीज। अगर टेस्ट सीरीज आप लगातार लिख रहे हैं और टेस्ट सीरीज लिखने के बाद आपको पर्सनल अटेंशन मिल रही है, जैसे मुझे मिल रही थी या अभिलाष को मिली होगी, कि जब मैं आया सर से तो सर ने भी यही बताया कि अभिलाष ने इस बार को स्वीकार किया, पिछले सिलेक्शंस में भी, इस बार भी, कि हाँ यहाँ से आने के बाद ये लगता था कि अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वो डाउट क्या होते हैं? डाउट 2-4 हैं जो आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी रहते थे कि मैं ऐसा क्या लिख दूँ इस कॉपी में कि मैं IAS बन जाऊँ, यही डाउट रहता है। मतलब आप जो लिख रहे हैं आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। वो भरोसा कौन जनरेट करेगा? वो आप मतलब बेहतर जानते हैं। अगर मेरा जो एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको यकीन ना हो तो वो फिर आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं रहेगी। मैं निकल चुका हूँ इस भौर जाकर। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं बोलूँगा पेपर 3 के बारे में, एथिक्स के बारे में तो बात हो गई। पेपर 3 के बारे में जब मैं मिलता था मेरी इकॉनमी बहुत कमजोर है, बिल्कुल मतलब साहब वही से मैं बता रहा हूँ, मुझे इकॉनमी नहीं आती है। सर से मैंने बात की, मैंने कहा सर मुझे तो कुछ आता नहीं है इकॉनमी के बारे में, मुझे डर लगता था, बचपन से डर लगता था, अभी भी डर रहा हूँ। सर ने कहा ये इकॉनमी का पेपर नहीं है बेटा, ये GS का पेपर है। अविनाश ने ऐसे बताया कि हिंदू पढ़िए या जो भी आप पेपर पढ़ रहे हैं उसमें GS के जो टॉपिक है उससे रिलेट करके पढ़िए। वहाँ से शुरू हुई यात्रा, सितंबर का महीना था, सितंबर से मैंने ढंग से फिर इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू किया कि मुझे लिखना क्या है। फिर सर ने कहा कि अमर सेन पढ़ा है, मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ा है। उन्होंने कहा बस अगर तुमने अमर सेन पढ़ा है तो ये पेपर 3 टैकल कर ले जाओगे, बशर्ते तुम FBI या जो भी बैंकिंग के रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसका बेसिक आइडिया दे दीजिए। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आपको एक सही गाइडेंस मिल रही है। अगर आप अभी मुझसे पूछ लीजिए कुछ इकॉनमी के बारे में, शायद मेरे बस का नहीं होगा। हाँ, सोशियोलॉजी हिस्ट्री में हो सकता है अच्छा बता ले जाऊँ, लेकिन इकॉनमी मेरे बस का नहीं है। अपनी कमी मुझे पता थी, हो सकता है ये भगवान की कृपा थी कि मुझे अपनी कमी पता थी। मैं जाके सर के सामने रोता था कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, मुझे ऐसे है। हाँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा, ये मुझे भरोसा है कि मेरे पास संस्कृत है, इससे मैं अच्छा लिख लेता हूँ। बाकी पेपर 1 पेपर 2 मेरा ठीक जा रहा है। एथिक्स आप करा रहे हो, पेपर 3 में मुझे दिक्कत हो रही है। सर का यही कहता था कि पेपर 3 में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इकॉनमी है, साइंस टेक है, सिक्योरिटी आ जाती है। इसलिए जो भी चीज़ें अविनाश ने बोली या मैं बोल रहा हूँ, ये कोई प्रचार तंत्र नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा मोबाइल कोई चेक करना चाहे बाहर भी चेक कर सकता है, सारे के सारे मैसेज वैसे के वैसे हैं। जब आप स्टूडेंट होते हैं, जैसे हो सकता है कुछ लोग कहें भी कि अब तो आप IAS आपको मिल जाएगा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप स्टूडेंट होते हैं, जब तब आपकी जो फीलिंग होती है कि 4 अटेम्प्ट फेल 3, 5वें में मेंस लिख रहा है, ठीक है, मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड आत्मा की तरह घूम रहा था। फर्स्ट में मिला था, सर ने बताया तुम्हारा GRF है, तुम तो यूनिवर्सिटी में लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे लिए ड्रीम होता है। मुझे लगता है कि जो हमारी आँखें हैं तो हम बंद करते हैं उसको, और जब हमें हमारा गाँव, हमारे माँ बाप दिखाई दे, या गाँव का कोई ऐसा आदमी जो आपसे ये बोला हो कि भैया बन जाना तो हमारा भी ध्यान रखना, अगर ऐसी चीज़ जब मुझे दिखती थी मैं सो नहीं पाता था, रात में बिल्कुल इमोशनल होकर बोल रहा हूँ। तब मैं सर को मैसेज करता था कि सर ये मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे बताइए, मुझे बनना ही है, IAS बनना ही है। और तब सर का 10-10 11 बजे रात को मैसेज आता था। मेरी वाइफ बोलती थी किसका मैसेज आ रहा है। मैं दिखाता कि देखो दिव्यांशु पटेल लड़का ही है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब रखनी चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट। जैसा मैंने 10 मिनट पहले बोला भी कि एथिकल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेंसिबल बनने की जरूरत है। और वो सेंसिटिविटी तभी आती है जब आपके साथ कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं। JNU में मुझे ऐसे मिले, DU में मैं पढ़ा, DU में मिले, लेकिन अल्टीमेटली आपको आना तो पड़ेगा ही, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर, कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए ही होती है। ऐसे भी लोग हैं जो बिना यहाँ आए हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं किसी पर्पज़ के लिए आए हैं, उस पर्पज़ के लिए मैंने बोला। बाकी सवाल अगर आपके कुछ हो, कुछ क्वेश्चन आप पूछ लीजिए जो भी पूछना है।
Check on 1, 2, 3, 4, 5. एथिक्स में जो केस स्टडीज होते हैं उसमें भी इसका नाम और उनका एथिक्स जो केस स्टडी था जब मैंने शुरू किया और जब जैसा मैंने लिखा है मेंस में वो आपको बता रहा हूँ। सर ने मुझे ये बताया था या जो मुझे लगा कि ये सही है, मेरे 121 नंबर है तो ठीक ठाक ही नंबर आ गए थे। सबसे ज़्यादा जीएस में एथिक्स में ही आए मुझे, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। 121 के पीछे जो कारण है वो ये था कि केस स्टडी को सर ने बोला था कि 2 अप्रोच में आप सॉल्व कीजिए। जैसे एक इस बार का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा हो या मेंस लिखा हो किसी सज्जन ने, उसमें यह था कि एक ओल्ड लेडी का केस स्टडी था जिसमें वो बैंक में जाती है और उनको उनके डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है और आप एज ए ऑफिसर क्या करेंगे। ऐसे सवाल पे सरकार जो भी गाइडेंस रहा था और जो मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया था कि ऐसे सवाल को टैकल कैसे करना है, वो ये था कि एक तो आप ऐसे सवाल में ये लिखिए कि एक शॉर्ट टर्म अप्रोच क्या होगी, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होगी। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपका पहले 2 पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। भाई वो लेडी है, बूढ़ी औरत है वो, और समाज का सबसे वल्नरेबल सेक्शन से वो आ रही है और आप एज ए ऑफिसर वहाँ बैठे हैं तो आप उसको केवल आधार कार्ड के नाते नहीं भगा सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप वहाँ पे लिखिए, कुछ भी लिखिए, एथिक्स का पेपर है, वहाँ पे कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है। पहले आप लिखिए कि पानी पिलाएंगे, यही लिख दीजिए कि पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कारण पूछेंगे कि कैसे हो गया, वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल आप ये मत कहिए कि मैं अकाउंट खुलवा दूंगा, 10,000 रुपये भी डाल दूंगा। तो ऐसा लिखा है लोगों ने, इसमें बोल रहा हूँ, मैंने आंसर पढ़े हैं अपने जो हमारा ग्रुप था प्रोग्राम IAS पे, कई सज्जनों ने ये लिखा था कि हम वो अकाउंट खुलवा के उसमें 10,000 रुपये भी डाल देंगे। तो वो भी इतना भी आपको नहीं वहाँ पे सेंसिटिविटी दिखानी है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का वो होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी होना चाहिए जिसमें आप गाँव के प्रधान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने लिखा था ये आंसर, या फिर किसी NGO की मदद आप ले सकते हैं। पर NGO को बार बार लाना मेरे हिसाब से जो मेरे मित्रों का हुआ या नहीं हुआ, दोनों कैटेगरी में है मेरे सर्कल में, उनके साथ जो बात हुई यही हुआ कि एथिक्स में बहुत ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व होकर लिख रहे हैं, बिल्कुल किसी ने लिखा था कि किसी टीचर ने उनको बोला होगा, मैं नहीं बोलूँगा, कि ऐसा लिखो कि टीचर पढ़ के रोज है। ऐसा नहीं लिखना है भाई, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा अगर आपने लिखा तो आप ही रोएंगे। मतलब ये तो एक्सट्रीम बात है ना, ये यहाँ पे शेयर करना इसलिए जरूरी है कि आप छोटा सा ग्रुप है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े से ग्रुप में फिर समस्या होती है। प्रोफेसर TK उमन का नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने, सोशियोलॉजी से कोई हो। प्रोफेसर TK उमन जब हम लोग को JNU में पढ़ाते थे, उन्होंने यही कहा था, जब मैं बड़े बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ तो मैं घटिया सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। जब 10 लोग मिलते हैं मैं ढंग से उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। ये जरूरी है कि वहाँ पर बुलाना नहीं है भाई, मतलब मेंस में आप बुलाने की कोशिश मत कीजिएगा किसी को। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बोलनी है कि हाँ जी, गांव के प्रधान को मैं कॉल करूँगा कि आपके गांव में ये लेडी है, आधार खो गया, तो आप खुद उसको सर्टिफाई करके भेज सकते थे मेरे पास या ले आ सकते थे। तो ऐसी चीज़ें लिखिए कि लगे कि आप IAS बनने जा रहे हैं तो आपके पास प्रिंसिपल दिमाग है, उसी के लिए पेपर लाया गया है। और कुछ वहाँ पे नहीं चेक करना कि आपको गांधी, कौटिल्य और ये सारी चीज़ें रटी हुई हो और पता हो। कौटिल्य का सवाल था, मेरा संस्कृत ऑप्शनल है, मैंने नहीं पढ़ा था ये सवाल, या कौटिल्य की कोई थ्योरी नहीं पढ़ी थी। हाँ, संस्कृत ऑप्शनल था, 1-2 श्लोक याद थे, श्लोक लिखे और सारा व्याख्या संस्कृत के हिसाब से कर दिया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये कहा है, यही होगा, यही होना ही चाहिए। बस बाद में आया तो बड़े बड़े दिग्गज पर बैठ के जो थे, जैसे अविनाश भाई खुद है, हो सकता है किसी और ID से रहे हो, फोरम IAS से। भोले पर मैं डाल दिया वो आंसर, भाई साहब मैं तो ये लिख के आया हूँ। और उसके बाद मेरी खूब खिंचाई में, अच्छा भाई आप तो जो है संस्कृत के विद्वान है, आपने तो ये लिख दिया। पर कुछ लोगों ने जो एनालिस्ट में अच्छी रैंक थे उन्होंने बताया कि नहीं भाई आपने अच्छा लिखा है, ऐसे ही लिखना चाहिए। कुछ सिलेक्टेड लोग पहले से थे, उसमें एक ID उन्होंने बताया, वो IRS के साथ, उन्होंने बताया कि नहीं तुम्हारा ये आंसर सही जाता है। ये चीज़ें जरूरी है और ये तब आपको आता है कॉन्फिडेंस जब पीछे से आपको रेटिंग मिली हो। जैसे ऐसे की रात में अगर आपको ये मिल जाए सुनने को 135 आ रहा है तुम्हारा, तुमने ये चीज़ें लिखी हैं, ये इम्प्रूवमेंट हो सकता था, बट अब आगे तो केस स्टडी का आपने पूछा है, उसका यही है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये अप्रोच था, और ये हर जगह नहीं लागू होगा। जैसे माइंस और वो जो डैम बनाने वाला इस पर केस स्टडी आई थी कि आप क्या करेंगे, उसमें एक सीधा सा, उसमें आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक रियलिटी है, उसको आप करंट अफेयर्स से रिलेट करके लिखिए कि हाँ ये रियलिटी है, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि जो भी आपने हिंदू में आर्टिकल पढ़ा, फ्रंट लाइन में पढ़ा, या कोई डिबेट देखी,
या जो मेरी यूनिवर्सिटी जिसके लिए जानी जाती है कोई प्रोटेस्ट वगैरह सुना हो कि ऐसा हुआ था, होता है नियामगिरी के लिए किया था जेएनयू वालों ने, तमाम आदिवासियों के लिए करते रहते हैं। अगर कुछ भी ऐसा दिमाग में है कि हाँ जेएनयू वाले गए थे, लाठी खाई थी, या कोई एक्टिविस्ट वहाँ मेधा पाटकर जैसी गई है, वहाँ उनको डिटेन किया गया, या और उनकी डिमांड थी, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ब्यूरोक्रेटिक वे में, जैसा मैंने किया था अपने जेएनयू के जो साथी थे उनके पोस्टर वगैरह वहाँ देखते हुए, मेरे दिमाग में यही आया कि ये क्या कहते हैं, ये मनमोहन सिंह का कैसा कार्टून बनाया है, मोदी जी का कैसा बनाया था, अच्छा ये इनकी डिमांड है। सर मैंने यही किया कि उसको अपने दिमाग में रखा और एक सिंपल सा आंसर लिख दिया कि हाँ आदिवासियों की जो राइट है गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज कर रही है, और उसमें थोड़ा सा और एफर्ट थी। तो ये मेरा बाकी का कुछ और नहीं, एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हम क्या किसी टिकर को या कोड कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इटिस का पेपर बिल्कुल आपका सिर्फ एक साल का प्रिपरेशन नहीं, आप जो नर्सरी से लेके अभी तक पढ़ा है, आप जो घर में अच्छी बातें बताई जाती हैं, घर में कोई मॉरल लेसन मिला है, गीता, कुरान, बाइबल, आप यहाँ से लिख सकती है, पंचतंत्र की कहानी जहाँ से कोई रिलेट कर सकती है। अरे जैसे मान लीजिए एक इतिहास का क्वेश्चन था कि आप ऑफिस में हैं, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, शायद पहले ही था, और आपको आपके ऑफिस में बहुत प्रेशर है, आपको बोला जा रहा है आप अपना काम करो, यू हैव सीन नथिंग और यू हैव हर्ड नथिंग, दिस टाइप का क्वेश्चन था अबाउट अ वुमन जिन्होंने नई नई नौकरी कर की। तो अब इसको आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, कोई कहानी बता दीजिए सिंपल से, पता नहीं सही की है, आप ये लिख दीजिए कि बीस पितामह खड़े थे, द्रौपदी का चित्रण, तब उसको मॉडिफाई कर कि देखते रह गए, लेकिन खाली कुछ उन्होंने किया नहीं, लेकिन पूरा एक खत्म हो गया, डायनेस्टी खत्म हो गया। तो आप खाली अगर खड़े होकर कोई भी देख रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहा है तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। तो अपने वर्क को जस्टिफाई कर रहे हैं, पंचतंत्र की अच्छी अच्छी कहानी है, छोटे छोटे बहुत मॉरल लेसन हम लोग बचपन में मॉरल उठाए, उसको यूज़ कर लीजिए। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर लिखकर, आपको जो पता है और ऐसा लिखिए कि जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसने भी पढ़ा हो, मतलब ऐसा थिंकर मत लिख दीजिए जो उसने भी ना पढ़ा हो, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर समझ नहीं पाएगा। और वैसे मैं पूरा माइनस तो नहीं अब जैसे कि इन्होंने जैसे बताया एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके अर्थशास्त्र वाला, चलिए हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें कुछ आइडिया है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेकिन आप खुद सोचिए करप्शन में आप कुछ जनरल बातें तो लिख सकते हैं, और पटेल अगर बड़ा आदमी था तो अच्छी अच्छी बातें लिखेगा, तो जनरल बातें तो नहीं छोड़ेगा, तो कुछ बातें आप ऐसी लिख सकते हैं जो कि अज्यूम है कि होगा ही होगा। करप्शन को प्रॉब्लम की तरह रिकॉग्नाइज किया था, करप्शन की कुछ व्याख्या की, कुछ बेसिक तो लिख ही सकते हैं जिस क्वेश्चन, हाँ लेकिन इस क्वेश्चन में आप नहीं लिख सकते। अगर इसमें आपको सीन नहीं पता है, तो रघुपति राघव फिटनेस अच्छा है कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो आपका कम से कम अगला क्वेश्चन जो चेक करेगा वो तो अच्छे माइंड सेटअप से चेक करेगा। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता, जैसे उन्होंने मैकब्राइड कहानी बनाई थी वैसे आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ये एथिक्स वाली बात ये कि आप अपने आप को टॉपिक पे या सिलेबस पे लिमिट मत करिए, बचपन से लेके अभी तक का जो भी ज्ञान आप उसमें लगा सकते हैं लगा सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 3 में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही था, अर्बन फ्लड का, उसमें जो अप्रोच था दोनों में अलग लिखा था, मैं तो सेम ही लिख दिया था जो आ रहा था उसमें। देखिए आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको दो बताता हूँ, एक आपने अर्बन फ्लड का बोला, पेपर 1 में क्वेश्चन था, पेपर 3 में ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन पेपर 1 में क्वेश्चन कहाँ मेंशन वो 14 से 20 क्वेश्चन का पार्ट था जो कि ज्योग्राफी से डील कर रहा था, और पेपर 3 में क्वेश्चन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक क्वेश्चन होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें सिंपल एक डायग्राम में बना लीजिए और ये लिखिए कि चेन्नई में इस साल अर्बन फ्लड आया, बॉम्बे में 2005 में आया था, उत्तराखंड में यहाँ आया था, और एक साल दिल्ली में कई सारा नालियों में जाम हो जाती है, ऐसी बेसिक प्रॉब्लम। आप एक मैप में अगर खाली एक जोग्राफिकल सेंस में दिखा दीजिए कि कौन कौन रीजन में हो रही है, अगर आप क्वेश्चन अपना ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं तो एक जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ला रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जोग्राफी का है तो कुछ जरूरी है। और इसके बाद आप जोग्राफिकल कारण लिखिए कि यहाँ क्यों हो रहा है, भाई वेस्ट लैंड का जो वेटलैंड्स का यहाँ पे अतिक्रमण, मतलब उसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, नई नई बिल्डिंग बन रही है, प्लानिंग में गड़बड़ है, तो ये जोग्राफिकल सेंस में लिखते हैं। अब अगर यही सेम क्वेश्चन मेरे को लिखना हो इकोनॉमी में, तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक तो लिखूंगा, उसमें मेरे को मैप की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा कि अर्बन फ्लड की वजह से इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुँचता है, मेरे पास एक डेटा हो गया उसका, तो मैंने उसी चीज़ को इकोनॉमिक सेंस दे दिया कि 1 बिलियन का नुकसान हो जाता है डॉलर का साल भर में, और इसको अगर इसके लिए हम अरेंजमेंट्स लें वेटलैंड्स को कहीं और करने का पड़े तो उसमें कम खर्चा आता है, तो नेट इकोनॉमिक प्रॉफिट है।
इसकी वजह से जो माइग्रेशन होता है उसमें से उसकी वजह से वर्कफोर्स का लॉस होता है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी घटती है। कुछ इस टॉपिक कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो इसी क्वेश्चन का हम इकोनॉमिक सेंस बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और था साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में हम लोग सब मारे गए, हम लोग इंडिया चाइना का मतलब रिलेशनशिप लिख सकते हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आया था कहाँ, ज्योग्राफिकल पोर्शन। अगर आप मैप बना के उस रीजन का कुछ बताएंगे कि कैसे एक रिसोर्स रिच एरिया है, एक नेविगेशन का सोर्स है, इसीलिए कंटेस्ट होता है, वो बातें भी थोड़ी सी लिखेंगे, लेकिन एक उसमें ज्योग्राफिकल एंगल देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन उसी पर्सपेक्टिव से पूछा गया। तो ये बात आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, बहुत जरूरी है कि जिस पोर्शन में क्वेश्चन आया है उस पोर्शन के हिसाब से लिखिए। और एक सवाल था इस बार इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पहले पेपर, वो सवाल सबसे ज़्यादा फंसाया है लोगों को। मतलब मेरे हिसाब से जितनी मेरी बातें थी लोगों के डिस्कशन से, या मैं ये लिखा है, मैं ये लिखा है, सारी बातें टेस्ट सीरीज का फाइनल जो पहुंची थी पिछले साल की, जो पिछले 2016 में हुआ है AI में, उसका पेपर आप देख लीजिए, सेम सवाल लगभग उसी लाइन पे था। मैंने लिखा था, मुझे 3.5 या 4 नंबर मिले थे, उसमें यही लिखा हुआ था कि आपसे जो पूछा जा रहा है आपने वो नहीं लिखा है, आपने बाकी आंसर में ठीक लिखा है। तो सर से डिस्कशन हुआ तो सर ने बताया मुझे कि ये हमने ये पूछा था इसका कि इसका भौगोलिक महत्व क्या है, इसका सामरिक महत्व क्या है, इंडिया अगर इसको रिपील कर दे तो इंडिया को क्या नुकसान होगा। और सेम सवाल लगभग मेंस में यूपीएससी ने पूछा कि अगर इंडिया इसको रोकती है, इंडिया में क्या इसको दिक्कत होती है, खुद हमारे देश में, वो लिखना था, वो लोगों ने लिखा नहीं। उसके अलावा सारी चीज़ें लिख डाला कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि इंडिया को क्या नुकसान होने वाला है अगर पानी हमने रोक दिया। वो तो आप सवाल पूछ रहे थे, लगभग सिंगल लाइन पे मैंने लिखा था, इतना अच्छा नहीं लिखा था, पर लगभग सिंगल लाइन पे लिखा था। ये जरूरी है कि सेक्शन में देखना कि आप किस सेक्शन में आ रहे हैं। सर बताइए सर आपने आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए बिपिन चंद्र सर अच्छा सोर्स है, और मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम जैसे मैंने कोई पढ़ा नहीं था, मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ा हुआ है, और वही फ्रीडम स्ट्रगल, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत लोग पढ़ते हैं, तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो अच्छी किताब ही होगी। तो मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी है, और क्योंकि कई अटेम्प्ट है तो कई बार पढ़ी है, तो मेरे ख्याल से सर बहुत कुछ सोर्स की उसके लिए इतने ही बहुत है, तो ये बहुत है सोर्स। तो ये भी जरूरी है कि आप बहुत ज़्यादा सोर्स के पीछे इधर उधर मत जाइए, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम बात पहले भी उनकी बोला था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि सोर्स बहुत हो। अब आप अगर एक बंदा इनसाइड भी करेगा, विजन भी करेगा, और 5 साइड और भी करेगा, और फिर सीरीज भी करेगा, कैसे करेगा? आप एक तो सोर्स पकड़ लीजिए, उस पर ट्रस्ट करिए, और उस पर ट्रस्ट करिए और उसको कंटिन्यू करिए, तो उसको करिए। आप लोग तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ही रहे हैं, अपने में ट्रस्ट रखिए, और लास्ट अपना नोट्स को एक बार चेक करिए फिर किसी कोचिंग के रेट से कि अच्छा मेरे में कुछ छूट गया तो मैं उसको ऐड कर, तो आपका कवर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ज़्यादा किसी के पीछे भागिए नहीं। एक ये फिनोमेना है कि रिजल्ट आता है तो लोग को लगता है कि जो टॉप किया उसने खूब अलग किया होगा, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। वो तो कुछ तो लक फैक्टर की वजह से किया है, कुछ अपनी मेहनत की वजह से किया है। तो आप अपने टीचर्स को भरोसा रखिए, क्योंकि जो लोग खड़े भी हैं वो भी टीचर्स को जरूरत खड़े हैं। तो हर टॉपर अपना एक इधर उधर की कहानी बताएगा, आपका अपना एक स्टाइल होगा, आप उनसे इंस्पिरेशन लेना हो लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन किसी को इमिटेट मत करिए। अपने स्टाइल के हिसाब से अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए और अपना प्रिपरेशन का शैली बनाइए, और जो अपना डाउट सर से शेयर करिए, इस बेसिस पे काम करिए। किसी को और मत आ जाइए। आजकल होता है रिजल्ट निकलते ही मान लो कहता है कि यही लड़का है बस। अरे सब बहुत लोग ऐसे हैं, सब लोग जानते हो कि सभी टेस्टिंग में आते हैं, जो कि मैं आज भी उसमें कोई इसमें है नहीं कि मेरा दोस्त अरविंद कुमार राय सर से मेरा पहली बात हुई, सर बोल रहे थे, और मैं भी मानता हूँ इस बात को कि मेरा दूसरे नंबर होना चाहिए था, उसका होना चाहिए, और उसका नहीं हुआ है और मेरा हुआ है। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे अपवाद हैं इस यूपीएससी की साइकिल। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपना स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन बनाइए, और जो दिक्कत हो टीचर से मिलिए, कंसल्ट करिए। Sir, first of all, congratulations to both of you. I want to know about your interview experience. इंटरव्यू मेरा एयर मार्शल सर से बोर्ड में था, चीफ भोसले, और 160 नंबर मिले हैं, तो वो ना बहुत खराब है ना बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो ये था कि अगर मुझे जीएस में नहीं नंबर मिले होते तो मैं शायद 204 रैंक में नहीं होता, और शायद मुझे अपनी कैटेगरी में आईएएस में नहीं मिलता। इसलिए इंटरव्यू का तो ऐसा है कि
जब मैं वहाँ से निकला बाहर तो मुझे ये पता था कि 170-75 मिलने चाहिए। एक चेन्नई में ऑफिसर्स अकेडमी करके आप लोग ऑनलाइन जमाना जानते हैं, जेवा सिंह सर करके हैं, उनको मैंने व्हाट्सएप किया था, उनका नंबर था ग्रुप में, उन्होंने मुझे बोला 200 नंबर के ऊपर आ जाएंगे। और उसी दिन मैं हंस रहा था कि ये मतलब फालतू की बातें हैं, 160-70 आने चाहिए, 160 मिले। बाकी अभिलाष बताएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो माहौल था वो मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे अच्छा बोर्ड है इस समय एयर मार्शल सर का। आप जाएंगे, आपको 140 भी मिलेगा तो आप रोते हुए नहीं आएंगे, आप सभी हंसते हुए आएंगे वापस। जैसे पहले कुछ बोर्ड थे माननीय सदस्य लोगों के, जिनके नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है, कई लोग उनको बोलते हैं कि वो बुला के ही बेचते थे और बुलाने वाले नंबर भी देते थे। एटलीस्ट इनके साथ ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे बड़े आराम से बात की। और सबके साथ भी 206 नंबर है। प्रियांक जैन है, हम लोग आए थे सीएम भी है यहाँ पे, यहीं के स्टूडेंट है वो, उनको 206 मिले हैं सेम बोर्ड से। और संस्कृत ऑप्शन उनका भी था, ऐसा नहीं एक को 160 दिया, एक को 206 दिया। यूपीएससी का जो इंटरव्यू है ना वो आप छोड़ दीजिए, तो जो आपके हाथ में है, जो आपका मेंस है उस पर फोकस कीजिए। अगर 862 नहीं होते मेरे मेंस में तो शायद मैं भी 500-600 रैंक में होता। होना बहुत जरूरी है, लिस्ट में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर होता नहीं है कि पहले प्री हो जाए, प्री हुआ फिर वो मेंस हो जाए, मेंस हुआ फिर ये हुआ इंटरव्यू में अच्छा मैं बोल ले जाऊँ, फिर जब दे लिया फिर रोज मैसेज हो रहा है ग्रुप में कि यार नाम आ जाए लिस्ट में, नाम लिस्ट में आया तो अब लगता है कि 10 नंबर 15 नंबर और होते तो मैं इधर होता। वो चीज़ें आप मेंस पे फोकस कीजिए, जीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, एसए पे फोकस कीजिए। ऑप्शनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक ऑप्शनल है यूपीएससी के केस में डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर ऑप्शनल में 280 होते मेरे 303 नंबर की जगह, शायद मैं बहुत पीछे होता, उसमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरव्यू के लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए वहाँ पे ऐसा है कि आपके सामने 150-160 साल का एक्सपीरियंस बैठा है, 5 आदमी हैं और सब काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हैं। कोशिश करिए कि आप झूठ बोलने का प्रयास ना करिए, अपना रहिए, अपनी बात को करेक्ट करिए, जो आपका बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जितना बता सकते हैं डील करिए। दूसरी बात ये कि कोई भी बात जो आप कह रहे हैं उसको लॉजिक दीजिए उसके। आपसे मतलब मेरे ख्याल से उसमें खुद ही यूपीएससी कहता है कि आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो चुका, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी का लुक्स के बारे में नहीं है, तो लुक्स के बारे में नहीं है, पर्सनैलिटी ये है कि आप किसी चीज़ को कैसे समझ के प्रेजेंट करते हैं, आपसे जो पूछा है उसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं। कभी कभी आपको हो सकता है बहुत स्ट्रेस में डालने की कोशिश करें, शायद इस बार ऐसा नहीं हुआ बहुत के साथ, लेकिन स्ट्रेस में डाल रहा है तो वो आपको बुलाना नहीं चाह रहा है, वो आपको देखना चाह रहा है कि अगर आपको स्ट्रेस आएगा तो आप झेल पाओगे नहीं पाओगे। उसी तरीके का एक कामनेस रखिए, ऑब्जेक्टिव रैशनल तरीके से आंसर दीजिए, और अगर कोई नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में उनका झूठ नहीं जाना है, बोल देना है कि सर ये मुझे याद नहीं आ रहा, या मुझे सर अभी मैं पहले पढ़ा हो गया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। उसको कह के निकल जाइए, जो क्वेश्चन आता है उसको ईमानदारी से आंसर करिए। 3 तरह के रेंज है इंटरव्यू के मार्क्स में, एक 140 वाली रेंज है, एक 160 वाली रेंज है, उसके बाद 185 के ऊपर आप जितना ले सकते हैं, 215-230। मुझसे एक सवाल पूछा गया था, जो मेंबर इधर बैठते हैं, मेंबर 1 चेयरमैन, मेंबर 1 मेंबर 2 ने पूछा था, और वो बड़ा स्ट्रेस से वो पूछ रहे थे कि पहले शुरू किया उन्होंने, अब एक बैकग्राउंड बनाया, कॉन्टेक्ट किया कि तुमने मैम को ये बोला, सर को ये बोला, और तुम्हारा संस्कृत ऑप्शनल है, तुम्हारा मीडियम क्या है? मैंने कहा सर इंग्लिश। उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम संस्कृत को इंग्लिश में लिख कर आ रहे हो? मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जी, और आपका जो मीडियम ऑफ हो रही है आपकी पढ़ाई एजुकेशन, वो क्या रही है? मैंने कहा सर एमएड तक तो मेरी हिंदी में हुई पढ़ाई डीयू में, जेएनयू में वहाँ मजबूरी है, आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया सर। बोले तुमने अपने आप को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आकर वही एमएड कन्वर्ट किया? मैंने कहा सर। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप यूपीएससी तो हिंदी में लिख सकते थे। मैंने कहा सर जब सारी पढ़ाई उसमें हो रही है इंग्लिश में, 5-6 साल से मैंने सीखा है, मैंने सोचा इंग्लिश में ही लिख लिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तो इंटरव्यू तो हिंदी में दे सकते थे। मैंने कहा सर जब सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है तो मैंने कहा बहती गंगा भी है भी इंग्लिश में ही चलेगा। फिर वो बिल्कुल आप हंस रहे हो, वो बिल्कुल चेहरा ऐसा उनका था जो इंटरव्यू के अंदर अगर कोई आप लोगों में से गया हो तो उसको याद कीजिए कि मेंबर बिल्कुल गुस्से में पूछ रहा हो, जानबूझ कर गुस्सा दिखा रहा हो और आपको रिप्लाई देना हो। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा ये भी दे लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि तुमको हिंदी और बाकी जो अपनी वो भाषाएं हैं वो इंग्लिश के मुकाबले ज़्यादा नीचे नज़र आती है। और ये असली क्वेश्चन था, ये जो सवाल दिया उन्होंने, फिर मैंने बताया नहीं सर अगर
ऐसा होता तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया पूरी, जहाँ मुझे मजबूरी लगी कि यहाँ के आगे नहीं हो सकता है, वरना JNU में पढ़ नहीं पाऊँगा, सोशियोलॉजी में MA नहीं हो पाएगा। मैं सीखा हुआ था तो मैंने वो किया। ये एक सवाल था जो मुझे लगता है पूरे इंटरव्यू में मुझे बिलो एवरेज पे नहीं मिल गया, अदरवाइज हो सकता था 140 चला जाता, 135 मिला है लोगों को। कई सिलेक्टेड लोगों को पिछले साल 116 नंबर मिले थे, 116 नंबर पे कोई लड़की थी और उसको 80 या 85 के बीच में रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कामनेस रखिए और जो भी है वो बोलते रहिए बस। लिख सकते हैं कुछ चीजें लिखनी पड़ती है। सारे लिटरेचर में आपको 3 सवाल उस लिटरेचर में उस भाषा में लिखने हैं, बाकी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं, जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो एक्सप्लेन करने वाले सवाल हैं वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। एथिक्स में आपने वो श्लोक लिखा तो इंग्लिश नहीं, वो मैंने सर से डिस्कस किया था टेस्ट सीरीज में, तो ये था कि रोमन लिपि में लिखना है, रोमन इंग्लिश जो होती है उसमें लिखना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्थ इंडियन जो सज्जन है वही कॉपी चेक कर रहे होंगे, हो सकता है साउथ इंडिया का या नॉर्थ ईस्ट का कोई हो और उनको हिंदी बिल्कुल पढ़ने में भी ना आती हो। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ लिखी, जैसे क्रोध पे सवाल था, एंगर मैनेजमेंट कुछ करके उसका आंसर मैंने लिखा पहले कुछ चीज़ें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ अपना ज्ञान दिया, उसके बाद एग्जाम्पल दिया कि जब दुर्योधन जा रहा था वहाँ पे वन महल के अंदर, तो द्रौपदी हंसना शुरू कर दिया था जब वो जान नहीं पाया कि पानी है या फर्श है। तो ये एक मतलब द्रौपदी की हंसी के नाते दुर्योधन को गुस्सा आया और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरा महाभारत खड़ा कर दिया। उसके बाद से ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये दिखाता है कि ये ऐसे होता है सोसाइटी में, आपको कंट्रोल रखना चाहिए इमोशंस पे। ये मेरा अपना ज्ञान था उस आंसर में। नीचे आते आते मुझे लगा यार ज्ञान में कुछ कमी लग रही है, आंसर बन नहीं पा रहा मुझसे। अच्छा मैंने बस सोचा 10 सेकंड क्या है मेरे पास, स्टॉक में भी क्या मटीरियल पड़ा हुआ है। और वो एक श्लोक है, उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उस 10 लक्षण में एक लक्षण अक्रोध है। वो मैंने पूरा श्लोक भोगन लिपि में 2 लाइन में लिखा और अक्रोध का नीचे हेडलाइन बना के उसकी हाईलाइट किया और लिख दिया कि अक्रोध भी धर्म का 10 लक्षण है। और धर्म से हमारा मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म जो इंडिया में माना जाता है वो कंडक्ट से, मोरल कंडक्ट से, वो मतलब एथिक्स का आंसर जैसा वो बना दिया कि पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर साहब को लग जाएगा लिखा है इसमें। बेसिकली व्हाट्सएप की भाषा में इंग्लिश लिखनी है। हाँ, जैसे आप लिखते हैं कि अभी कहाँ आ रहे हो, ABHI वो जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ना आ रहा है उनको हिंदी, फिर आपका सारा एफर्ट बेकार हो जाएगा। और जब ऐसा लिखा करें तो ब्रैकेट में ट्रांसलेशन भी दे दिया। वो तो दिया था, वो तो देना ही पड़ेगा, वो एक्सप्लेन किया था। सिर्फ 2 के साथ वो नहीं चलेगा, 2 लाइन लिख दिया और वो छोड़ दिया कि आप समझिए। टाइम एलोकेशन में जैसे पार्ट A का क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, तो आप कितना टाइम एलोकेट करते थे मतलब A और B में? केस स्टडी पे मतलब मुझे तो ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। देखिए दोनों बराबर मार्क्स है ऑलमोस्ट, तो ये अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है कि दोनों को बराबर समय दिया जाए। ठीक, तो जब नंबर इंपॉर्टेंट है, पर ये है कि केस स्टडी पर लिखने में 5-10 मिनट एक्सीड हो जाता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग ही जाता है। तो इस बार मेरे ख्याल से मैंने 1 घंटा 40 मिनट के आसपास या 35 मिनट के आसपास टेस्ट सीरीज लिखा होगा बाकी समय। लास्ट ईयर एक लड़का था कुमार हर्ष 42 या 43 है, उनका वीडियो देखिएगा फोरम IAS के उस पर है यूट्यूब पे, तो उसका वीडियो मैं देखकर गया था और मुझे ओवरऑल आइडिया था कि जो केस स्टडी है उस पर अगर आपको अच्छा लिखना है और इस पेपर में 120 के ऊपर नंबर लाने ही लाने हैं, ये अगर आपको लगता है कि आ सकते हैं, केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने ये लिखा था कि बोला था कि हमने जो कुछ मुझे लगा वो मैं लिखता गया, रनिंग राइटिंग में था और ऐसे ही लिख के चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, वो उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था कि ऐसा उनको नंबर आ गए। तो पढ़ने वाली राइटिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपको समय चाहिए, 10-15 मिनट जो भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे सोचने के लिए। लास्ट की जो केस स्टडी थी आपको अगर याद होगा, लास्ट की केस स्टडी NGO वाली थी, उसमें दुनिया भर के जो एक्ट है और FCR या जो भी उसमें लिखना था, उसके दिमाग को बजट हो जाता है। उसमें आपने लिखा है, आपको ज़्यादा पता है, मतलब वही एक्सपीरियंस जो मेरा है। उस वक्त जो होता है कि अगर नर्वसनेस आ गई तो पूरा आपका जो एफर्ट है वेस्ट हो जाएगा। आर्गूमेंट नहीं आपका बनेगा, आर्गूमेंट नहीं आया केस स्टडी में। मेरे हिसाब से यही है कि अगर आर्गूमेंट नहीं आ रहा है अभी केस स्टडी के आंसर में और आप ज्ञान में ज्ञान दिए जा रहे हैं कि
बूढ़ी औरत को मैं दादी मान लूँगा, मैं ये कर दूँगा, नहीं होगा, आर्गूमेंट देना पड़ेगा। एक चीज़ और, जैसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो 7 से 8 मिनट रहता है approximately, तो आप पहले 2 मिनट सोचते हैं या 2 मिनट या 1 मिनट सोचते हैं? उसी के लिए तो ये टेस्ट सीरीज है। अगर वही दिक्कत होती है नहीं, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज इसीलिए कि आपका माइंड कंडीशन होना देना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखें, सोचें, वो बिल्कुल थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ पहले प्रोग्रामिंग है। कोई प्रैक्टिस इसीलिए है ना कि वहाँ जाके सब दिक्कतें ना हो। अगर आप जैसे इंडस वाटर ट्रीटी था, लास्ट जो सवाल था वो, और तब तक लिखते लिखते आदमी का दिमाग भी थकने लगता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे तो याद आ रहा है CCD है, जाके कॉपी पीनी है बस उतना ही। मेरे दिमाग में ये आ रहा था, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सवाल देखा तो ऐसा था, किसी लगा कि बस AI का ही सवाल है, लिखते जाओ, आँख बंद की और लिखते गए बिल्कुल वही। हाँ, वो वही प्रैक्टिस का तो इम्पोर्टेंस है। आपको सोचना नहीं था फिर वहाँ पे कि क्या लिखना है। Sir, I am a fresher and I am giving exam for the first time. What advice will you give about the Sanskrit optional? संस्कृत से लिखना है No, means guidance and sources available over here. तो संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें गाइडेंस कहीं कहीं अवेलेबल है, सोर्स बहुत कम है। एक ब्लॉग है शशांक त्रिपाठी का, लास्ट ईयर 5th रैंक का, उन पे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं। मेरे तो अपने नोट्स अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, पर मैं भी डाल दूँगा, जैसे भी अच्छे हुए हैं आप देख लीजिएगा। हाँ, ये है कि जो मटेरियल है, मटेरियल आपको सिलेबस तो मिल जाएगा, पढ़ना क्या है वो किताबें भी मिल जाएंगी। चौखंबा कमला नगर में DU नॉर्थ कैंपस के पीछे मार्केट है, वहाँ पे चौखंबा ओरिएंटल करके दुकान है। संस्कृत की सारी बुक्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी, हिंदी में तो मिल नहीं जाती है। मेन है गाइडेंस। स्टीफेंस में एक टीचर है, डॉक्टर पंकज मिश्रा, मेरे टीचर थे, पढ़ाया है स्टीफेंस में मुझे, वो इनसे आप ले लीजिए, वो हंसेंगे मेरा नाम सुन के वैसे। बाकी एक टीचर राजेंद्र सर है, जिनके साथ मैंने टेस्ट सीरीज की थी, वो इस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जिनका नाम बिल्कुल ऑफिशियल उस पर ले सकता हूँ, उस प्लेटफॉर्म से ले सकता हूँ कि हाँ, अगर आपको संस्कृत ऑप्शनल से लेना है तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर के पास जाइए, हिंदू कॉलेज में है, तो नंबर चाहिए वाला आप ले लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। उनके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो बाकी आपको मुझे लगता है कोचिंग की जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी का ऐड वेड आप देख के पूछ रहे हैं तो सब बेकार है। और शशांक त्रिपाठी का ब्लॉग पढ़ लीजिए, मतलब मुझे अपना लिखना है, मैं लिख लूँगा, लेकिन अगर अभी आपको तुरंत पढ़ना है शशांक त्रिपाठी टाइप कीजिए, ब्लॉग आ जाएगा, नोट्स भी आ जाएंगे। मेहनत से उन्होंने नोट्स बनाए थे, मैंने उनसे हेल्प ली, फ़ोन में भी बात करता था, फेसबुक से भी चैट करता था। तो ये ज़रूरी है जानना कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसपे नंबर आते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि नंबर आते ही आते हैं। 128वीं रैंक पे है मेरे मित्र हैं आकाश गुप्ता जी, वो तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है, और लास्ट के 2-3 अटैम्प्ट उनके इसीलिए नहीं क्लियर हो रहे थे, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही थी कि संस्कृत में 190, 185, 195 नंबर ही नहीं आ रहे थे। और संस्कृत में जब ऑप्शनल में 230-35 का एवरेज चल रहा था, जैसे इस बार का एवरेज ऑप्शनल में 260-65 का है, सबको इतने आ गए हैं। पिछले सालों में 230-35 का एवरेज था, तब आकाश के 180-90 आ रहे थे संस्कृत में। खुद बोल रहे थे कि ये तो मेरे लिए इंसल्ट की बात है कि संस्कृत में लोग कहते हैं मैथ कितना नंबर है। फिर हमने बात की, इस बार उनके 284 नंबर है, 128वीं रैंक। ये जरूरी है जानना कि आपको जाना कहाँ पे है, ये सीरीज कहाँ पे करनी है संस्कृत की, तो राजेंद्र कुमार सर है। पंकज सर आपको पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, स्टीफेंस के प्रोफेसर हैं, तो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज नहीं कराते हैं। लोग साथ बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने तो बिल्कुल जो पैराग्राफ था उसमें अगर कुछ याद है, पहली बार मुझे डेटा याद होता नहीं है, जो कुछ याद था, जैसे जो सवाल कैसे लिखना था इस पर डिजिटल इकॉनमी पे, कुछ वो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आया था कि इंडिया और भारत का कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बना के कि ऐसे है, वो 4 चीज़ें याद थी, तो मैंने पैराग्राफ में लिख दिया था, क्योंकि उसमें मुझे मेरा जो अपना सोचना था कि लगता है एग्जामिनर को कि ये समझा ही रहा है, ये केवल रेटोरिक नहीं बना रहा है चीज़ों को। अगर आप टेबलर फॉर्म में लिखेंगे वो तो योजना में भी पढ़ लेगा, विषय में भी पढ़ के आ रहा है, आप उसको क्या दे रहे हैं, उसके बाद ना टाइम नहीं मुझे लगता है चेक करने का कि आपने पूरा टेबल बनाया, मेहनत भी की, टाइम भी खाया, और नंबर अगर आपके 110-120 आ रहे हैं इससे में, फिर मुझे लगता है वो उतना हो। सर पवेट पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा कुछ अबाउट स्टडी मटेरियल है। देखिए बहुत वाइड टॉपिक है, पूरा ऐसा बताना किसी ऑप्शन के बारे में, लेकिन मैं ये कहूँगा बेसिक बुक्स तो सबको पता ही होगी मेरे ख्याल से, कोई भट्टाचार्य की बुक वगैरह। उसके अलावा मैंने
अंसारी सर हैं, लुकमान IAS मुझसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज भी वही की हुई है, तो उनकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बाकी अपना जो है, और पेपर 2 का किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि उसमें जो आपका जो कमेटी कमीशन इंडिया में बने हुए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव KRC ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड दोनों ले लीजिए, पानीपत क्रिमिनल जस्टिस कमेटी रिकमेंडेशन ले लीजिए, वेंकट चलैया की ले लीजिए, तो ऐसे कमेटी कमीशन के रिकमेंडेशन का एक थोड़ा आप रखिए उसको अपने पास, और जहाँ भी मौका मिले उसको यूज़ करिए कि इस कमेटी ने ये कहा था, इस तरीके से इसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। क्योंकि आप कोई बात कह रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप जो बात कह रहे हैं उसको कहीं किसी कमेटी कमीशन से सब्सटैंशिएट कर पाएंगे उसका एक इम्पैक्ट अगर आता है। दूसरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं इसका पढ़ने का बहुत फ़ायदा है कि आप KRC की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन के ऊपर जो इनका एनालिसिस है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और आपके पास समय है कि आप अगले साल दे रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से बहुत सारा डाउट आपका, बहुत सारा चीज़ें क्लियर होगी और बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते हो, इम्प्लीमेंट पता नहीं होता है नहीं होता है। KRC बहुत अच्छा मटेरियल देता है, उसको आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी और रिकमेंडेशन तो सिर्फ सोल्यूशन है। तो जो जनरल स्टडीज़ वाले हैं वो रिकमेंडेशन यूज़ कर लें, वो है उनको टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो कमेटी कमीशन पढ़ के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में। बाकी मोहित भट्टाचार्य वगैरह की बेसिक बुक्स है वो पढ़िए, तो मेरे ख्याल से बुक से पढ़िएगा जरूर। अगर आप कोचिंग का नोट्स ले रहे हैं लीजिए, लेकिन बुक से जरूर पढ़िएगा। मेरे ख्याल से हाँ, बुक से जरूर पढ़ना चाहिए, बुक से फ़ायदा तो मिलता ही है। संस्कृत ऑप्शनल था, अगर आप MR काले लिखा है, सिलेबस में साफ साफ लिखा है संस्कृत के सिलेबस में, अभिज्ञान शाकुंतलम 4th कैंटो MR काले एडिशन। लोग क्या करते हैं, पंकज सर के पास जाएंगे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कितने लोगों को बता दिया है कि मैं स्टीफेंस में हूँ लेकिन पढ़ाता भी हूँ। उन्होंने ये कहा कि MR काले पढ़िए, MR काले पढ़िए, लोगों ने नहीं पढ़ा, नंबर नहीं आया संस्कृत के ही ऑप्शन में। कई लोगों की इस बार की 210 220 नंबर आए, तो बहुत ही खराब नंबर। अगर आप जैसा भी बता रहे हैं मोहित भट्टाचार्य की किताब है तो आप नहीं पढ़ने को बैठ के लिए, संस्कृत में ऐसा है कि MR काले आप नहीं पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन लिखना सब बहुत श्लोक आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि लड़की एक ट्रस्ट की तरह है, जिसमें कर्ण डिस्ट्रिक्ट शकुंतला के लिए बोल रहे हैं, और वो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो MR काले ने एक्सप्लेन किया है। आपको वही की वही लाइनें अगर उतार देते हैं तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, आप नोट्स के पीछे भागेंगे। कोई संस्कृत का ऐड दे दिया हिंदू में कि हम आपको 20 दिन में संस्कृत तैयार करा देंगे, बड़ा छोटा सा है, पढ़ लो भाई आप जाके 30 दिन में अगर संस्कृत आ जाए आपको, तो संस्कृत 30 दिन में कैसे कोई सीख सकता है बताइए, पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आपको पढ़नी चाहिए। मैंने पब्लिक पॉलिसी के लिए थोड़ा सा देखा था, लेकिन बाकी नहीं। मेरे ख्याल से जो आज का प्रोवाइड का पेपर आता है ना, लास्ट ईयर पे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट आ गया, पर उतना रेलिवेंट नहीं है उसका। वो बहुत ही स्टैटिक पोर्शन पे डील करता है, और शायद 2012 के पहले उसका बहुत रेलिवेंस था। हाँ, अब थोड़ा अच्छे डायनेमिक है तो उस तरह को डील नहीं करता है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो फिर एक पढ़ रहे हो तो रिपीटेशन है, बुक्स ही पढ़िए, उसमें वही बेसिक लॉ हो जाए। हाँ, ये एक विषय है, मुझे पता नहीं कि मोहित भट्टाचार्य जी किताबें हिंदी में हैं, तो जरूर से मोहित भट्टाचार्य जी की किताबें अगर हिंदी में उसे पढ़िए और होपफुली अच्छा ट्रांसलेशन किया होगा तो सेंस ऑफ लॉस नहीं होगा। टेस्ट सीरीज वगैरह तो है, सारी सर चलाते हैं, और मुखर्जी वगैरह तो शायद उन्होंने चालू किया, बाकी मुझे हिंदी का थोड़ा सा इसके बारे में मालूम नहीं है। साल बाद तो सर मेरे को करंट अफेयर का डाउट है, जैसे गाइड में तो दिया हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली एमपी से चालू होगा डॉक्यूमेंट है सर, इतना प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, लेकिन मैं ये बता कि आप अपना एक हैबिट डेवलप करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डेवलप करिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का हैबिट डेवलप करिए कि करंट अफेयर्स खाली न्यूज़पेपर पढ़ना, उसका उसको कई जिस तरह से बताया कि आपको ये एनालिसिस कर लेना है कि ये मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कि किस पोर्शन ऑफ सिलेबस का है, तो इसका एक एप्टीट्यूड डेवलप करिए। मेरे ख्याल से अभी से नोट्स बनाने से उतना फायदा नहीं है, आप जिस साल अटेम्प्ट दे रही है उसके एक साल पहले से भी काम करना चालू करिए। हाँ, एक साल पहले तो बहुत। और दूसरा मैम, अगर आप अभी देखना चाह रही हैं तो इस एग्जाम में जैसे मैंने कहा राइटिंग स्किल का बहुत रिलेवेंट है, तो अपनी राइटिंग स्किल पे वर्क करिए, प्रेजेंटेशन पे वर्क करिए, ऐसे में अपना नंबर बढ़ाइए। अगर आपका लिखने का फ्लो अच्छा है तो ऐसे में नंबर खींच सकते हैं आप, तो उस पर आप अभी से वर्क कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़िए, अवेयर रहिए, थिंक से एप्टीट्यूड डेवलप करिए। पर अभी मोस्ट मेकिंग में भी मत जाइए, अभी बहुत समय है, 2 साल के बाद देना है तो अभी से करना है। आप ओपिनियन मेकिंग में रखिए, हाँ। नोट्स मेकिंग से ज़्यादा ओपिनियन मेकिंग। राज्यसभा टीवी देखिए क्या राजनीति में चल रहा है, दिमाग को डेवलप होना चाहिए ताकि टेंशन में वो डिफरेंट। और सर ये राज्यसभा और लोकसभा के जो मतलब आते हैं पब्लिक फोरम है, जैसे ये देश में शाम कराया और इनसाइट्स है। हाँ इनसाइट है, और जितने भी आते हैं आकांक्षी आते हैं वो सारे के सारे देखिए। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे देखिए, एक इनसाइट्स है और एक है इंडिया का वर्ड आता था। इंडिया से लोग तो साथ ही में एक बार क्या है। हाँ, ये लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम है, इसमें सबसे फायदे वाली चीज़ ये है, इसमें जो पैनल मेंबर्स आते हैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड और एक्सपीरियंस ओपिनियन देते हैं। ब्यूरोक्रेट होते हैं या तो एकेडमिशियन होते हैं और नोन केसेस होते हैं और अच्छा ऑब्जेक्टिव बात करते हैं। और इंटरव्यू में मिल भी जाते हैं साहब बैठते थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उनकी बातों को सुनिए, उससे आपको एक व्यू पॉइंट डेवलप होगा, एक एप्टीट्यूड अच्छा डेवलप होगा। और अगर मौका मिले तो जरूर देखिए इसको कि ये दोनों की इनसाइट्स और इंडिया के वर्ड दोनों अच्छे हैं। इंडियाज वर्ल्ड, इंडियाज फ्रैंक परेरा स्ट्रक्चर ऑफ द केस स्टडी, जैसे कंफर्टेबल इंटरव्यू तो थोड़ा सा एक ऐसा है कि जैसे केस स्टडी आया तो पहली कुछ लाइन 1-2 लाइन को एनालिसिस करनी है केस स्टडी, ब्रीफ फैक्ट्स या ब्रीफ एनालिसिस की केस स्टडी क्या डिमांड कर रही है किस बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई केस स्टडी आई है उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए, जिस केस स्टडी इन्वॉल्व्स टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल कंसर्न, या कोई और वैल्यू हो, प्रोबिटी हो, जिस केस स्टडी डील्स विद थोड़ा हिट करेगा आपकी जो टॉपिक में जो कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं ना, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, इस सबको को स्टडी में लाना है क्योंकि जो स्टडी है वो इन्हीं टॉपिक के आसपास घूम रही है। तो आप जब अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो ये लाने की कोशिश करिए कि अच्छा ये केस स्टडी किस वैल्यूज किस से डील कर रही है, या तो जस्ट बेसिक मेंशन करिए कि केस स्टडी में ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। बाकी जो मैंने सीखा है ये है कि कुछ अप्रोचेज हैं, जैसे कि थोड़ा स्टार्टिंग में फाइनल आंसर में थोड़ा आंसर से लिखने से पहले थोड़ा कुछ ऐसा लिखिए कि स्टेक होल्डर से इन्वॉल्व फार्मर्स हैं, किसी में सोसाइटी लार्ज हो सकती है, किसी में इंडस्ट्री हो सकता है, किसी में गवर्नमेंट को रहेगा, ये नॉर्मल सिटीजन हो सकता है, कभी एनजीओ हो सकती है। तो स्टेक होल्डर का एक चार्ट बना दीजिए। दूसरा उसमें एक्सप्लिसिटली लिख दीजिए वैल्यूज इन्वॉल्व, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और उसमें फर्जी वैल्यू मत लिखिएगा कि आपने को 7 वैल्यू बताया तो हर आंसर में 7 लिख रहे हैं। उस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू सटीक फिट बैठ रही है इसका टेस्ट है। और ये तब आएगा जब आपने वैल्यू का कंसेप्ट एक बार पढ़ के समझ लिया है कि इस वैल्यू का मतलब क्या होता है और ये कैसे है। तो आप ये दिखा सकते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें पार्शियलिटी का टेस्ट है, इसमें इंटीग्रिटी है, इसमें रेक्टिट्यूड है, इसमें फोर्टिट्यूड है, ऐसे कुछ वर्ड है, कुछ काफ़ी सारे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइए अपने ऑप्शंस पे आइए, उसका मेरिट लिखिए और उसमें जैसे 4-5 ऑप्शन आएंगे, या तो आपको उस 5 में से एक चूज़ करना है या तो एक नया ऑप्शन लिखना है। तो आप जब 4-5 लिख रहे हैं तो उसका मेरिट डिमेरिट का पॉइंट बहुत मत लिखिए, 2-3 लिखिए, उसका एक एनालिसिस कर दीजिए छोटा मुश्किल 2 लाइन में। लेकिन हाँ जो पॉइंट आप चूज़ कर रहे हैं उस पर आपको मेजर एम्फेसिस देना है, उसको आपको मेरिट डिमेरिट लिखना है, जो डिमेरिट लिखा है उसको काटना है कि कैसे डिमेरिट नहीं है, क्योंकि वो आपका आंसर है, उसको आप चूज़ कर रहे हो, उसको आपको एक्स्ट्रा जस्टिफाई करना है। उसको बाकी सब अगर आधा पेज लिख रहा है तो उसको 1 पेज क्योंकि आपका आंसर है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बल देना, ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी लिखना है। और इसी में आप अच्छे एग्जाम्पल और करंट अफेयर से रिलेट करिए। और एंडिंग के समय जैसे उन्होंने कहा बताया कि कोई भी सॉल्यूशन का एक तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन एंडिंग आप ये कह सकते हैं कई सारी सिचुएशंस में कि इस बार ये प्रॉब्लम आई है, दिस प्रॉब्लम हैज अकर्ड दिस टाइम, वी शुड मेक लॉन्ग टाइम चेंजेस इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाटएवर मे बी द केस, सो दैट these sort of problems do not arrive in future by learning from the experience. This may be an opportunity of a kind. तो एक पॉजिटिव और लॉन्ग अप्रोच पेंटिंग दी जाती है उसको, इस तरीके से कर सकते हैं। पर ये इसको आप ऐसा नहीं कि गांठ बांध लीजिए कि वैसे ही लिखना है, आप अपना स्टाइल डेवलप करेंगे, लेकिन एक ये तरीका हो सकता है। Regarding choosing the options, we need to rate the options. Regarding first option may be this. फर्स्ट ऑप्शन While we choose the options in case study, we will rate the options. This is my priority. Regarding the वो डिपेंड करता है आ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें प्रायोरिटी की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप प्रायोरिटी वाले ऑप्शन बताइए, तो उसमें फिर आप प्रायोरिटी बताइए कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के कमांड को पढ़िएगा उसमें। कहीं कहीं तो ऐसा है कि क्वेश्चन में पूछा है मेरिट डिमेरिट या प्रॉस एंड कॉन्स, तो
तो हम लोग क्योंकि इतना कस्टम हो जाते हैं लिख लिख के फिर तो क्रॉस एंड कॉस्ट पूछा तो भी हमारी हेडिंग मेरी टू डी मेरी मैंने अपने आंसर खुद में लिखना है, कम से कम ये गलती ना होती। तो ये एग्जाम्पल मुझे देता है कि रेक्ट होता है, तो आप क्वेश्चन के वर्ड को भी यूज़ करिए ही करिए, क्रॉस एंड कॉन्स करके। हालांकि हो सकता है वही चीज़ लिखी हो, लेकिन उसमें कम से कम हेडिंग क्रॉस एंड कॉन्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरी डिमेरिट उसमें एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं है। आपको अपनी हैबिट में, राइटिंग हैबिट में मुझे तो समझ में आया, इससे और एथिक्स में एज ए डिबेटर लिखना होता है, लिखना चाहिए, मतलब लिखना होता तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक खांचे में को फंस जाएगा। हाँ, लिखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। एज ए डिबेटर जब आप लिखते हैं, जैसे मैंने ऐसे में लिखा डिस्कस दिस, नाउ वी कैन से दिस, मतलब जो चेक कर रहा है उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश में था कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू वैल्यूज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू वैल्यूज है, मान लीजिए कि बूढ़ी और की स्टडी, जिस पे हम लोगों ने बहुत मजाक बनाया था एक्चुअली अपने ग्रुप में, इसलिए मैं बार बार उसको बोलता हूँ कि वो दिखाता है कि एक वैल्यू है एम्पैथी। मैंने एम्पैथी में वो सारा गेम खेल दिया उस केस स्टडी में, एम्पैथी को लेकर मैं होता रहा पूरी केस स्टडी में कि ऐसे 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 है और पब्लिक अथॉरिटीज़ को ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। हो गया आगे 121 नंबर। अभी आप पे जैसा अभिलाष भाई ने कहा कि पीछे पीछे भागो कि नहीं नहीं यही जो इन्होंने लिखा है वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज ले आइए कि नहीं नहीं बिल्कुल वो उस औरत की ही गलती है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, वो उसने क्यों उसको गुम हो गए, ठीक है वो लिख दिया आपने। अब यहीं से तो डिबेट शुरू हो रही है कि ठीक है उस औरत का हो गया वो डॉक्यूमेंट, तो बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके सामने, अथॉरिटी वीडियो है, ग्राम प्रधान है, उनका क्या रोल होना चाहिए, कैसे आपका रोल होगा, फिर उसमें आप डिबेट में ले आके उसको एक एंडिंग दीजिए। पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए। एसए में और एथिक्स में पॉजिटिव एंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। कई लोगों ने बहुत डिप्रेसिंग एंडिंग दी थी, डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता, ये डिजिटल इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। मैंने एक लाइन लिखा था, मतलब हो सकता है अच्छी लग गई हो एग्जामिनर साहब को, कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये इम्पॉसिबल नहीं है पर एक डिस्टेंट ड्रीम है इंडिया के लिए भी, अभी हमें बहुत आगे जाना है। मैंने भी लिखा था निगेटिव लैंग्वेज नहीं, तो वो निगेटिव लैंग्वेज पॉजिटिव फील दे रही थी। हाँ भाई इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा है, डिस्टेंट ड्रीम बोल रहा है, दूर की पौड़ी की सही स्थिति में बोल रहे हैं। कुछ ऐसा आपको लिखना है, डिबेटर की तरह लिखेंगे तो नंबर आएगा, ये मतलब मेरा मन है। सर एक ये मेन से पहले जो जीएसटी है पॉलिटिकल साइंस वाला, उसके लिए आपने एप्लीकेशन का दोबारा से देखिए मैं चाहूँगा निरंजन मतलब ये क्योंकि मेरा कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन है तो मैं कभी उतना सेपरेटली नहीं पढ़ा दिया उसको, उसमें खाली वो इंटरनेशनल बॉडी वाला क्वेश्चन पढ़ा, तो पॉलिटिकल साइंस का नहीं, वो पॉलिटी का ये तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, आप बता पाएंगे मेरे कोई CS2 के लिए लक्ष्मीकांत, एक तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, और ये कोई मतलब मैं थोड़ा हंस के बोल रहा हूँ इसका मैंने नहीं कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, ऐसे ही हो गया तुक्के में नहीं होता है यूपीएससी, ये भी निकाल देना चाहिए दिमाग से। अगर तुक्के में होता शायद मैं पहले टाइम नहीं निकल गया। लक्ष्मीकांत पढ़ना है, उसके सीरीज लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है द हिंदू के आर्टिकल वो आपको लेने हैं, और जो बार बार अभिलाष बोल रहे हैं अगर आप लोगों ने वो बात पकड़ ली है और बेनिफिशियल होगी कि कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं कि हिंदू का आर्टिकल आया, आर्टिकल छोड़िए कोई न्यूज़ आई जो आपको दे रही है, कुछ वैल्यू सिस्टम के लिए दे रही है या कोई किसी एक्ट के लिए दे रही है, उसको आपने नोट कर लिया। नोट तो बनाना ही पड़ेगा, ये आपका दिमाग इतना शार्प हो कि आपको याद आ जाए। जैसे इस बार का सवाल था, इस पर कश्मीर वाले पे था 370 आर्टिकल 370 था, उसमें डिबेट में चल रहा था, फिर भी लोगों ने गलत सलत पता नहीं क्या क्या लिख के आ गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में लिखा ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें बता दी, ये हमने लिख के आए हैं, मैं प्रोवाइड का स्टूडेंट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। भाई साहब का मेरे से मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जिनका हुआ इंटरव्यू में नंबर आए अच्छे बुरे जैसा भी लिस्ट में नहीं। तो GS2 के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आप अवॉइड की तरह ना देखें, वो अपना एक अलग उसका एरिया है, उसमें आपको कम चीज़ें पढ़नी है लेकिन ढंग से पढ़नी है। राज्यसभा टीवी के लिए बताया अभी अभिलाष ने, वो शो देखने हैं तो वो देखते समय ऐसा नहीं देखना है सूट कैसा पहना है, ऐसा क्या, ऐसे ही क्यों बात करता है। कई मेरे फ्लैट में रहते थे, तो मैं यहाँ पे कोचिंग ले रहा था, तो बात एक बंदा आया, उसने कहा यार ये विवेक कार्टून जो है ये बड़ा एरोगेंट सा है। मैंने आपको आर्गूमेंट सुनना है भाई, मेरे एरोगेंसी नहीं देखती है उनकी, तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनको करने तो आप आर्गूमेंट लो, नोट करो और टीवी बंद कर दो या लैपटॉप बंद कर दो, वो चीज़ है। GS2 के लिए यही है कि आपको देखना है राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, डिबेट देखनी है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो GS2 का पेपर आपने देखा हो पिछले साल भी, तो यही है, कश्मीर के ऊपर आया, दिल्ली के ऊपर केजरीवाल जी और LG की लड़ाई के बीच में आया। अब अगर आप उसमें वो आर्टिकल नहीं लिख रहे हो
239 अगर वो 239 नहीं आ रहा है आपके आंसर में, फिर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर आप चाहो तो मैं सर को व्हाट्सएप कर दूंगा अपना क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन देखते ही मैंने उस पर 239 लिखा हुआ था, और जब मेंस दे गया तो मैंने पापा को दिखाया अपने कि ये पापा देखो ये सवाल आया है, इस पर जो लड़का ये नहीं लिखेगा उसको नहीं आया। सर को जब मैंने भेजा, सर ने भी यही कहा 239 लिख दिया है। ये चीज़ें जरूरी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ना है। और रश्मि कांत मोर देन एनफ, कुछ हो सकता है और बड़े टॉपर्स हैं वो कुछ और बता दें GS के लिए, और ये इकोनॉमिक्स में मेरे यहाँ बिल्कुल तंग है, मैं नहीं बता सकता। आप पहली बार तो मैं सेगमेंटेशन मत करिए। अप्रोच एक है, बेसिक अप्रोच तो सेम है। इकोनॉमी की न्यूज़ करंट में आनी है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई टॉपिक उठा लीजिए आप, चलिए लैंड रिफॉर्म उठा लीजिए। लैंड रिफॉर्म आपने बेसिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा रखा है। फॉर एग्जाम्पल GS पेपर 1 में तेरे सिलेबस में है कि आपने इंडिपेंडेंस एक थोड़ा मेजर कीजिए है, उसमें 3-4 चैप्टर दे रखे हैं लैंड रिफॉर्म को अपने पढ़े हुए। उसके बाद अब आजकल में लैंड के एक्ट चल रहे हैं, अमरावती बन रहा है, उसके लिए लैंड पूलिंग मॉडल चल रहा है। ये सब क्या है? मेरा बेसिक है लैंड रिफॉर्म, फिर मैंने अमरावती में न्यूज़ पढ़ी, मैंने कहा इसमें लैंड पूलिंग मॉडल चल रहा है, तो बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म इसको ले आओ। LARR एक्ट चल रहा है, वो ले आओ। उड़ीसा में नियामगिरी की समस्या चल रही है, वो लैंड रिफॉर्म से डील करती है। पॉस्को की समस्या है, वो लैंड रिफॉर्म से डील करती है। तो ये क्या हो गया? मटीरियल इकट्ठा हो गया। अब लैंड रिफॉर्म का आपका क्वेश्चन आएगा, आप बेसिकली कि उस करंट जो एक्ट है उसका एनालिसिस कुछ यूज़ करिए। ये जो एग्जाम्पल 3 लिखिए, ये हो गया आपका लैंड रिफॉर्म। बजटिंग है, बजटिंग में ऐसे ही करिए, कुछ बेसिक रखिए अपने पास। फिर आजकल क्या आउटपुट बजटिंग चल रही है, 2016-17 के बजट में आउटपुट परफॉर्मेंस बजटिंग में बहुत दिया गया है, आउटपुट को लिंक किया गया है, उसको जोड़िए। इस बजट में और क्या नया है? इकोनॉमिक सर्वे बजट के बारे में क्या कहता है? कुछ बेसिक बजटिंग टेक्निक्स क्या है? लास्ट टाइम जेंडर बजटिंग उठते चला है, तो इस तरीके से हो गया। इसी तरह अमर सेन आप बिल्कुल, अमर सेन जैसे ऑथर है कि सभी पढ़ देना चाहिए, यूपीएससी दे ना दे, लेकिन हाँ अगर आप पढ़े हुए तो एडेड एडवांटेज मिलेगा ही आपको। पेपर 2 में अमर सेन का व्यू पूछा एजुकेशन पे, एक पूरा 12.5 नंबर का अमर सेन जी के लिए क्वेश्चन कोट करके पूछना है, अमर सेन नहीं कर तो अमर सेन कर दीजिए। अरे बहुत सारे आर्गुमेंटेटिव इंडियन से लेके वैसे तो अभी कल ये जो उन्होंने जॉन ग्रीस के साथ लिखी है ना, उसके पहले वाली अनजस्ट ग्लोरी, वो भी बहुत बेहतरीन किताब है और पैसे में मदद कर सकती है, पढ़ सकते हैं। पर देखिएगा अगर आप प्री और मेंस के बीच में देख रहे हैं तो समझ जाइएगा, उसका एडवांटेज नहीं है, तो समय से पढ़िएगा। नेक्स्ट ईयर भी देना है, वो ये चीज़ें पढ़ ले। और ये आपका मतलब कई लोगों को शौक होता है, बहुत सारा अपना है, और नहीं पढ़ना है तो कहीं से आप समझी पढ़ लीजिए, काम चलाने के लिए पढ़ना है। जैसे मेरा शौक नहीं किताब पढ़ना, लेकिन किताब का कुछ बेसिक जिस्ट मुझे भी पता है, कहीं चीज़ें हिंदू में छप जाता है कभी कभी, वो देख लीजिए आप, वो रिव्यू पढ़ लीजिए, आइडिया मिल जाता है। इससे स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं, कई लोग इसे वीडियो बना के डाल देंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ नहीं। एक कीनोट का साइट है, वो बेसिकली बुक्स का बहुत अच्छे से समरी देती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये भी की जा सकती है। सर एक अपना जैसे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट किया आपका हो गया इकोनॉमिक्स और यदि आप करंट है तो आपकी वो मोटी गलतियाँ जो अपना जो हमें नहीं करनी है, जो आपने की। देखिए गलतियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे पहले अटेम्प्ट में तो थोड़ा कैजुअल हो गया कि हो जाएगा, ऑप्शन में फोकस किया, GS में फोकस नहीं करता उतना। फिर दूसरे से थोड़ा सा ये समझ में आया कि नहीं ऑप्शन में तो करना ही पड़ेगा, फिर ऑप्शन में मूव किया तो ऑप्शन नंबर आया तो GS इग्नोर हो गया। और ऐसे हमेशा कंटिन्यूस स्ट्रगल चलता ही रहा, इस बार भी चला है। ऐसे मैं लड़ता रहा, लेकिन उसको हरा दिया, मैं प्रूव नहीं कर पाया बहुत। तो ये है कि हालांकि मुझे पता चल गया था कि मेरा ऐसे में हर बार मुझे 100 नंबर ऐसे में आते हैं, और ऐसे का एवरेज मेरे ख्याल से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं उनका 125-30 तो रहता ही रहता है, इस बार बहुत ज़्यादा होगा शायद। तो ये है कि ऐसे आपको एनालाइज करना है, इसलिए मैंने कहा कि 7 पेपर है, सबके 250 नंबर है, सबको बराबर वेटेज दीजिए। और मेंस देने के पहले, प्री देने के पहले एक बार आपकी मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि प्री से मेंस के बीच में इतना समय नहीं है कि स्क्रैच से तैयारी हो जाए। उसके बीच में आप अपने ऊपर को, अपने आप को मतलब और इम्प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन ला सकते हैं,
जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हैं और लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे। इसीलिए जैसे मतलब आपका पर्टिकुलर केस है, आपके पास समय है तो आपको अपनी मेंस की तैयारी प्री देने के पहले कर लेना है। भाई कर लीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर है, कल से करिए, आज से करिए। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको सोचिएगा, आप एक मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सबका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये आपका कॉल है। जिस दिन आपको लगे कि आज मुझे तैयारी करनी है बिल्कुल करिए, ये आपका डिसीजन है। लेकिन ये है कि बेसिक बात ये कि 3-4 महीना प्री के लिए लोग पढ़ते हैं, तो वो महीने के पहले आपका एक बार मेंस का ग्रास हो जाना चाहिए, आपके ऑप्शनल में मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल में और ऑप्शनल में मैं बता रहा हूँ, ऑप्शनल में नोट्स वाली मजबूती नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड ऐसा है कि देखिए कभी कभी कोई ऑप्शन सीधा नोट्स से आता है, जिस दिन वो ऑप्शन दिला गया, अगर आप खाली नोट्स पे डिपेंडेंट हैं तो फिर आप धक्का में आ सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन आप थोड़ा अपना मजबूत रखें। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है आप लोगों को पूछना चाहिए, शायद आप उसको मिस कर रहे हैं। देखिए जीएस में जो चारों पेपर है, सब जगह कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया है, ठीक है। जैसे जीएस अगर हम कहते हैं तो सब लोग के ध्यान में आता है हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, खत्म। लेकिन पूरे जीएस पेपर में आपको हर पेपर में कुछ ग्रे एरियाज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, अगर आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी नहीं है तो सोशल इश्यूज आपने नहीं पढ़ा हुआ कभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल जस्टिस पेपर 2 में अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, उस बैकग्राउंड से डेफिनेटली वहाँ भी आपको समझ में क्या पढ़ना है। पेपर 3 में भी साइंस एंड टेक हमेशा इल्यूसिव है, जितना पकड़ना चाहेंगे उतना दूर आएगा आपसे। और साइंस एंड टेक ऐसा एरिया है जहाँ लोग तैयार कर नहीं पाते अपने आप को। इसके अलावा भी जो कुछ बिजनेस सेक्शन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो भी एक ग्रे एरिया ही माना जाता है। उसमें पढ़ना क्या है, पढ़े तो क्या पढ़े, करंट अफेयर्स भी पढ़ के सिर्फ चले जाए। These are the few questions that you should always raise, because these guys have already faced that. They have faced that, they must have done some work, maybe some substantial work, some current affairs work. They must have done some work. Should learn also कि कहाँ से वो करना है। उसके लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि आप पढ़ लें, आप खुद को तैयार हो गए, ट्रेडिशनल में तैयार हो गया, कंटेम्प्रेरी में तैयार हो गया। कभी हो सकता है यूपीएससी पर ट्रेडिशनल ही पूछ लें तो आप फिर बोर्ड हो जाएंगे। कभी उसका कंटेम्प्रेरी पूछे तो शायद आप मैनेज कर लें करंट अफेयर्स पढ़ के, लेकिन ट्रेडिशनल अगर पूछ दिया तो आप क्या करें। तो ये सारे एरियाज आपको यहाँ रेज करने चाहिए, पूछने चाहिए कि इन सारे एरियाज में कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, ना कोई टीचर पढ़ा रहा है, ना कोई मटेरियल अवेलेबल है, नहीं आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है इसमें, बट आप सिर्फ कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स करके चले जाते हैं रेज देने हर बार। तो ये सोचना है कि अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नहीं आया इस एरिया से तो तब क्या हो, तो कैसे उसको हैंडल करना है। तो वो मुझे लगता है लोग आपको थोड़ा सा इसमें इनलाइटन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। सोशल इशूज़ का तो जैसे कि सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो 5-6 क्वेश्चन आते हैं और मेरे ख्याल से बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर उसमें आपने सही आपकी अप्रोच हो गई तो सोशल इशूज़ एक स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। 72.5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने एक जगह स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे कुछ उसमें टर्म्स हैं जिसके मतलब आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे पॉवर्टी का कंसेप्ट है, पॉपुलेशन का कंसेप्ट है, तो सब अगर आप बेसिक एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेंगे तो इस टर्म्स का ग्राफ मिल जाएगा। अब जैसे पॉवर्टी बीट्स पॉपुलेशन, इस पर हम लोग पेज तो आराम से लिख सकते हैं, पर क्या हम उसको जस्टिफाई करके लिख पा रहे हैं? तो ये वो तब आएगा जब आपने एक बार बेसिक सोसाइटी की सोशोलॉजी की जो 10th 11th बुक होगी एनसीईआरटी वाली, उसको एक बार पढ़ा होगा तो बेसिक आइडिया आपको होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड का आइडिया होगा क्या होता है, पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है, पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या है। तो लिखने से पहले थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। अब सीधे क्वेश्चन पूछा और आप लिख के चलेगा बिल्कुल करंट पे, तो एक बिल्डिंग बनेगी तो उसका कुछ बेस होगा। तो इसी का आंसर में जब लिख रहे हैं आप तो उसका थोड़ा सा बेसिक लिखिए, फिर उसको रिलेट करिए और फिर करंट पे आइए। तो इसी तरह बेसिक के क्लास के लिए एक बार एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लीजिए, सारे टर्म्स लिख लीजिए। तो फिर मैं वही कहूँगा कि अपने सिलेबस के टर्म्स को पढ़िए, उसको लिखिए, उसके बेसिक्स लिखिए और फिर जो भी न्यूज़ आई उससे रिलेट करिए। उसको टर्म्स को अगर आप छोड़ के चले जाएंगे और खाली न्यूज़ आर्टिकल पर रह जाएंगे तो आप क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो टर्म्स के लिए एक एनसीईआरटी है। बाकी सर आपने पिछली बार सर मुझे लगता है सर आपने एक कंपाइलेशन दिया था 40-45 पेजेस का, हाँ यू का, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें भी कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि ह्यूमन का कंसेप्ट है, ह्यूमन के एंगल से बहुत सारे कंसेप्ट हैं और उसमें जैसे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में क्या डिफरेंसेस है,
इस तरीके के काफ़ी सारे टॉपिक थे जो कि सोशल रेलिवेंस थे। इसी तरह ड्रग एडिक्शन के प्रॉब्लम जो पंजाब में चल रहे हैं, ये भी सोशल इशूज़ है। फिर माइग्रेशन का जो इशू है, तो ऐसे बहुत सारे बेसिक इशूज़ के हैं जो कि आप लिस्ट आउट कर सकते हो कि ये अपने इंडिया के प्रॉब्लम्स है। इसका बेसिक जैसे माइग्रेशन में अगर आपको माइग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो माइग्रेशन बोलते हो, और एटलीस्ट आप माइग्रेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, माइग्रेशन के बेसिक कारण क्या है, कैसे जरूरी इकोनॉमिकली कुछ जरूरी भी है माइग्रेशन और एक्सेस नहीं भी होना चाहिए, तो इस तरीके के कुछ एंगल नहीं ला रहे हो, क्योंकि अगर आप बेसिक रीड के रहोगे तो पता चलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ सोर्सेज से बेसिक जैसे सर ने दिया था एनसीईआरटी कुछ बेसिक पढ़ी थी, उसके बाद उस पर सवाल आया था जेंडर वेस्टिंग इसका आंसर मैंने जब शुरू किया था लिखना तो मैंने पहला लाइन में ये लिखा था, मुझे कुछ लेकर गया था कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। पहला लाइन ये लिख दिया, उसको कोट कर दिया, फिर मैंने शुरू किया लिखना। एग्जाम में मुझे लगा कम से कम कि ये जेंडर को समझ रहा है कि जेंडर है क्या, जेंडर वेस्टिंग हो ही क्यों रही है। अगर जेंडर केवल एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है फिर कोई ज़रूरत नहीं है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको बेस बना के लिखा